Okay, so welcome everyone on board. So today we will just try to have some words about respiratory system. Shahid, would you like to just tell that how can you evaluate a patient with reference to respiratory system clinically? How will you evaluate? सर इन उर्दू or English? Urdu? English. Just today take Sir, it we as a will evaluate practice. on Just today जी take it as a we practice for the exam, okay? जी sir. We will take sir evaluate on the basis of history examination. In the history, particular important regarding respiration is history of cough, history of dyspnea, history of hemoptysis, any swelling over ankle edema, patient told by the patient. And on examination, we will take count of the pulse rate, respiratory rate, uh, and then on percussion and palpation, percussion, and auscultation, there may be wheeze. Wheeze may be audible or What is evaluated by the difference? clinician. What is difference between wheeze and bronchi? Yes. Wheeze is told by the patient, and bronchi is a sign. Told by the patient? Symptom, basically symptom. Wheeze may be both sign and symptom, and bronchi will Okay. be evaluated sign. Evaluated by what? Basically sign. Okay. Actually, wheeze is which is audible. Okay. And this bronchi is being listened through the stethoscope. Okay. So are you missing something very important? Have you put any note on the respiratory distress? Did you say any word about respiratory Patient, distress? we will also assess about the patient ability to speak sentence in one breath. No. Okay. History of cyanosis is also. Okay. Okay. The sinuses. Okay. Let's just. Can anyone improve this answer? How will you evaluate? Atif, would you like to try? How will you evaluate respiratory system of the patient? Sir, was there any other thing mentioned in the background? I just joined. I'm sorry. Can you please repeat the question? I just joined in. Respiratory system of the patient. You are an anesthetist. You are evaluating a patient with reference to respiratory system. So how would you like to evaluate? I will evaluate the respiratory system of my patient based on the history, Have you physical just a second? examination, Are and you relevant. using headphones? Atif, are you using headphones? This, Can you remove headphones because you have a lot of echo. We are not able to listen to you. sure, sir. Is that okay, sir? Now? Yes, it's better now. Yes. Okay, I will evaluate my patient based on the history, Okay. physical examination, Just and a second. relevant lab Just a second. investigations. Just a second. Just focus on history at the moment. History, or you can say Okay. symptoms. So how would you evaluate with reference to history or symptoms? I'll ask for the most commonly presenting symptoms like cough, shortness of breath, uh, any sputum, bleeding with cough if the patient has cough, the nature of cough, if it's dry or it's productive, uh, the physical status of patient, Orthopnea, PND. orthopnea. I'll ask for the chest pain,
Okay. What else? Just like Shahid was telling. So wheezing is a symptom as well. Okay. Patient can Yes. tell that there is a sound coming. Okay. What else? Anything else? I don't think so. History. We are talking where just concentrate. We are talking about respiratory system. So would you like to have some? Dyspnea and exertion. No, no. Okay. Like this is all orthopnea P&D. This is also functional capacity. How much patient can move. This is also history. Okay. Any, if you are talking, if they are I will telling, also ask in the history. In the history, I also need to ask about any previous illnesses related to the respiratory symptom, Like- respiratory diseases, like like chronic obstructive pulmonary disease, asthma. you are missing, I need you to are ask about missing, the you smoking are history. missing. Yes, you are missing. Yes, smoking. Okay. Then, Smoking history. okay, what about If patient is addicted to opioids. hope addiction is not directly related to respiration. Okay. Hospital admission, Yes. If the patient has nebulization, ever been intubated and nebulization or ventilated. nebulization or inhalers. Okay. Any, if you just diurnal variation. Is there any what is the significance of asking this diurnal variation? Resistance will be Diurnal more variation during in the shortness of breath. Yes. Vasomotor asthma. Okay. Uh, Vasomotor asthma is more in early yes. morning. Okay, Atif? Yeah. Vasomotor asthma. Yes, sir. Then similarly, this is sort of not exactly diurnal variation, but orthopnea P&D is also a symptom. You will ask that are you able to how many pillows you take? Okay. Is there any like you are sleeping and you are waking up with dyspnea? So this is paroxysmal nocturnal dyspnea. Okay. Then what else? We talked about asthma. Sorry, we talk about smoking, nebulization, inhalers, any other medications. Okay. And Yes. common side effects of medications. What is the most common side effects of asthma medication? With reference, tachycardia. no, focus on Beta- focus on symptom. Okay, so patient will be saying palpitation, palpitation, and tremor. Mm. tremors. Okay. Okay. Any other symptom? So we talked about cough. We talked about shortness of breath, sputum. Is there any significance of the color of the sputum? Yes, sir. Yes. It Yes. it can vary with the source of infection or source of sputum. Usually, if it is yellow colored, purulent, it is infectious. Usually, green color is normal. Okay. Okay. With reference to the same in our part of world, to history of tuberculosis is also significant. Okay. Just a second. We see. I don't think so. There is anyone from other nationality, so we can breathe easily. ठीक है, तो देखें, हम लोग टीबी जो है ना, हमारे पार्ट ऑफ वर्ल्ड के लिए टीबी बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो टीबी की हिस्ट्री, आपको पेशेंट टीबी का नाम भी ले सकता है, लेकिन अगर आप प्रोब करना चाहते हैं, उसको नहीं पता पेशेंट को, अब आप चाहते हैं कि टीबी की हिस्ट्री को प्रोब करें, तो आप क्या सवाल करेंगे? अभी ये फोकस करो आतिफ, आप ही बताते जाओ। शायद आप सोचते रहो, अगर कोई चीज मिस करे आतिफ, तो आपने बताना है। टीबी की हिस्ट्री में आप क्या This- पूछेंगे? सर टीबी की हिस्ट्री में हम वजन के कम होने का पूछेंगे, शाम के Weight वक्त loss. हल्का बुखार होने का, खांसी वेट का, लॉस, फीवर, फैमिली हिस्ट्री ऑफ टीबी, वेट लॉस, लो ग्रेड फीवर एंड प्रोलॉन्ग कफ, और इसके अंदर सोशल हिस्ट्री भी पेशेंट की, सोशल इकोनॉमिक हिस्ट्री भी उसमें सोशल मैटर करती इकोनॉमिक, है, अगर वो एनीमिया, prison में रहा है या
एनीमिया और बिल्कुल मतलब सर। लाइक ये कि जो पुअर इनटेक, ठीक है, स्वेटिंग, ये सारी चीजें ट्यूबरकुलोस हिस्ट्री की तरफ जा सकती हैं, ठीक है। अच्छा, ट्यूबरकुलोस एक ध्यान में रखिए बात कि whenever you are talking about tuberculosis, remember one thing, that tuberculosis is not only limited to respiratory system, okay, it may be involving other Yes. systems, so intestinal TB, okay, so intestinal TB is also important. Patient even can present as in acute abdomen, okay. In females, intestinal tuberculosis is also associated with infertility. Sorry, tuberculosis is also not intestinal tuberculosis. Tuberculosis is also associated with infertility. Okay. Anyways, tuberculosis can occur even in eye. Tuberculosis can occur anywhere. Miliary tuberculosis. Like I think we have covered a number of symptoms. Let me have a look. Just a second, please. I'm sorry. Yeah. Okay. So, okay. And the other thing which you already mentioned about swelling of the face. Just let me see. Okay. Because I'm just um, okay. Okay. Now, so this will give you, अब आपके जहन में देखिए कॉमन जो रिस्पायरेटरी डिजीज हैं जो आपने रूल आउट करनी है, एस्थमा हो गया, COPD हो गया, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज. व्हाट अबाउट ऑक्यूपेशन? Okay. So a number of things may be related to occupational. So interstitial lung disease is one of is like that. उसके बाद जो है ना आपकी कुछ और डिजीजेस हैं, सिस्टिक फाइब्रोसिस है, उसके बाद सार्काइडोसिस है. सार्काइडोसिस की कोई एनेस्थीसिया के साथ सिग्निफिकेंस है? इट इज सर एसोसिएटेड विद रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज है तो इसके अंदर लंग कंप्लायंस कम होगी. एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस. ओके. सो ये Yes. HLA-B27 रिलेटेड होता है. तो ये सार्काइडोसिस और ये मतलब लाइक कि अगर किसी को सार्काइडोसिस है तो उसके अंदर ये वाली चीज़ों को भी आपने जहन में रखना है. एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, HLA-B27. तो एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में TM जॉइंट की इन्वॉल्वमेंट होती है. तो जब TM जॉइंट की इन्वॉल्वमेंट होगी तो आपकी इंट्यूबेशन डिफिकल्ट हो सकती है. ओके. ये कॉमन है. TB हमने बात कर ली है. तो जब आप हिस्ट्री ले रहे हैं ना तो आपके दिमाग में फोकस होना चाहिए कि मैंने इन चीज़ों को रूल आउट मैंने करना है. ठीक है. अच्छा, उसके बाद एग्जामिनेशन में क्या चीज़ देखते हैं जो जो सारा हमें बचपन से हमें बताया गया है ना, वो उसके ना आप देखें, जेहन में रखें बात कि सबसे आप हाई फाई चीज़ों पे चले जाएंगे. सबसे पहले आप रिस्पायरेटरी रेट के ऊपर फोकस करें. ठीक है. तो रिस्पायरेटरी रेट और उसके बाद पैटर्न हो गया, रिस्पायरेटरी रेट हो गया, और उसके बाद आपकी जो है ना साइंस ऑफ रिस्पायरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन कह लें या आप कह लें कि लेबर्ड ब्रीदिंग. ठीक है. वो क्या क्या होते हैं साइंस ऑफ लेबर्ड ब्रीदिंग? क्या क्या होते हैं? Nasal flaring, वेरी गुड. stridor, सॉरी. accessory muscle यूज stridor. करेगा. असेसरी मसल, अगर आप तरतीब से चलें तो स्ट्राइडर ऊपर आ जाएगा. ठीक है. स्ट्राइडर ऊपर Yes. जाएगा. यूज ऑफ असेसरी मसल्स, उसके अंदर चाहे वो चेस्ट की हो, चाहे वो सुप्राक्लाविकुलर, सॉरी सुप्रास्टर्नल नॉच का हो. ठीक है. सुप्रास्टर्नल या सुप्राक्लाविकुलर. ठीक है. ये मतलब आपको कॉन्सेप्ट में आपके दिमाग में साथ और साथ इस पेशेंट में ही स्वेटिंग भी होगी, इस पेशेंट में टैकीकार्डिया भी होगा. उसके बाद अब आ जाएं इसी से ही, अब आप हम जंप करेंगे COPD की तरफ. तो वो होती है पर्सिंग ऑफ लिप. बिल्कुल. ये पर्सिंग ऑफ लिप्स क्यों होती है? इसको क्या कहते हैं? पिंक पफर्स. Central. Pink puffer. Pink puffers.
अच्छा, पिंक पफर्स किसमें, एक मिनट शायद इनको बोलने दो प्लीज। मैं इसके बाद जो भी बोलना चाहता है वो अपना हैंड रेज करे, तो अगला अगला मैं हिस्सा आपसे लागों से पूछूंगा। जो भी पार्टिसिपेट, क्योंकि देखें वाइवा आप लोगों का है, आप लोग बोलेंगे इंटरेक्शन करेंगे तो फायदा होगा। आप लोगों में से जो एग्जाम कैंडिडेट है प्लीज रेज द हैंड। आप अपना हैंड रेज करें जो एग्जाम कैंडिडेट्स हैं, जिनका मतलब पहले है अटेम्प्ट या दे आर होपफुल टू पास द एग्जाम। एनीवेज, तो पिंक पफर्स होते हैं बेसिकली ये ऑटो पीप जनरेट करने के लिए, सॉरी ऑटो पीप कह रहा हूँ, उसकी जो है ना, जो बेसिकली जो ये एम्फाइसेमेटस होता है ना, तो इसमें पेशेंट जो है वो एक्सपिरेशन को करने के लिए वो अंदर, क्योंकि एयरवे कोलैप्स हो रहा होता है, तो ये जब लिप्स को ब्लॉक करके वो एक अंदर एक प्रेशर जनरेट करते हैं, उससे उनको ब्रीदिंग करने में हेल्प मिलती है, अदरवाइज दे आर नॉट एबल टू एक्सपायर। ठीक है, तो ये पिंक पफर्स वाला होता है, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद बाकी चीजें आप बताते जाएं। साइनोसिस हो गया, और क्या होते हैं हैंड में, क्या क्या साइन होते हैं, और क्लबिंग। अच्छा, एक मेरा यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि एक पेशेंट एनीमिक है, तो एनीमिया और साइनोसिस का कोई लिंक है? सर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम होगी जाहिर एनीमिक में, आप मिस तो कर रहे हैं। साइनोसिस की क्या डेफिनेशन होती है? मोर देन 5% जो थे डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन 5 मोर ग्राम। देन 5 ग्राम पर डीएल। ठीक है, तो जब एनीमिक पेशेंट में अगर है जी ही फॉर एग्जांपल 6 हीमोग्लोबिन, तो 5 ग्राम पर डीएल होगी इसके अंदर इजीली। नहीं होगी। तो इसलिए ये एक ज़हन में रखें कि एनीमिक पेशेंट के अंदर का समटाइम्स साइनोसिस इज नॉट दैट मच विजिबल। ये एक वैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ये डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है यूजुअली, क्योंकि जो ये वाले पेशेंट्स होते हैं ना, ये तो एक्चुअली पॉलीसाइथीमिक होते हैं। ठीक है, बिकॉज ऑफ हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया की वजह से, बोन मैरो की स्टिमुलेशन की वजह से ये लोग पॉलीसाइथेमिक होते हैं। लेकिन बहरहाल ये आपको एक छोटा सा पॉइंट है जो आप लोगों को पता होना चाहिए। साइनोसिस हो गया, क्लबिंग हो गई, वो इस सेंट्रल साइनोसिस होता है, पेरिफेरल साइनोसिस होता है, टिप ऑफ नोज पे देखते हैं, फिंगर्स में देखते हैं। ठीक है, अच्छा, साइनोसिस हो गया, क्लबिंग हो गया, एनीथिंग एल्स? अब आप आ जाएं चेस्ट पे फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो चेस्ट में क्या क्या साइंस मिलेंगे इंस्पेक्शन में? इंस्पेक्शन में क्या मिलेगा? Sir, diameter of chest, like the symmetry and बैरल चेस्ट। anteroposterior diameter. Barrel chest जो है COPD वाले patients में hyper inflated chest होती है उनके अंदर। ठीक है, और उसके बाद इनमें tactile vocal वही जो fragmentus हो सकते हैं। हम जो पहले बात कर चुके हैं ना, कि उसमें रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के साइंस होंगे। जो है वो सब कोस्टल रिसेशन भी होगी, इंटर कोस्टल रिसेशन भी होगी, सुप्रा क्लेविकुलर भी होगी, इंटर कोस्ट सॉरी सुप्रास्टेनल भी होगी। ठीक है, और उसके बाद जो है वो तो अब आप जो परकशन है और ऑस्कल्टेशन है, उसमें वो वोकल फ्रैमेटस, जो एम्फाइसीमेटस होता है ना, वो हाइपर इन्फ्लेटेड होता है यूजुअली। ठीक है, अच्छा, एक जेन में रखें बात कि ये एम्फाइसीमा और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस जो है ना, ये ये नहीं होता कि एक पेशेंट में सिर्फ क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के साइन हो, या और सिर्फ बिल्कुल भी ना हो एम्फाइसीमा। एक्चुअली ये दोनों साइंस होते हैं, किसी में एक ज्यादा प्रोमिनेंट होता है, किसी में दूसरे ज्यादा प्रोमिनेंट होता है, लेकिन ये दोनों हो सकते हैं। ये मतलब लाइक है कि ये सीओपीडी जहां पर भी होगा, उसमें ये आमतौर पे दोनों चीजें हो सकती हैं। एम्फाइसीमा का एक रिलेशनशिप होता है किसी एंजाइम से? अल्फा 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 1 सर देन में नहीं आ रहा एंटी, हाँ जी एंटीट्रिप्सिन एंटीट्रिप्सिन। डेफिशिएंसी। ठीक है, तो ये बेसिकली जो एयरवे, आप ये समझ लीजिए कि जो उसकी टोन है ना, वो इससे खत्म हो जाती है। जो अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन है ना, उसकी जो डेफिशिएंसी होती है, नाम से पता लग रहा है ना, ये एंटी ट्रिप्सिन को ये खत्म करता है। जो ट्रिप्सिन होगा वो एंजाइम, लिटिक एंजाइम होगा। ठीक है, तो एनीवेज, अच्छा, उसके बाद जो है आपकी एग्जामिनेशन की कुछ बातें हमने कर ली। उसके बाद अब इन्वेस्टिगेशंस जो हैं वो क्या क्या, पहले स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन बताएं, फिर ब्लड वर्क्स पे एंड पे आएंगे। स्पेसिफिक चेस्ट में, आप जो चेस्ट एक्सरे है उसमें क्या मिलेगा?
सर अगर एस्थमेटिक पेशेंट है, ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज है, उसके अंदर जो है वो इंटरकोस्टल स्पेस इंक्रीज होगी, एक सेकंड, एक हॉरिजॉन्टल सेकंड, हुई होंगी रिब्स। एक सेकंड, एक सेकंड। पहले तो आप मुझे ये बताएं, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एस्थमा एंड सीओपीडी? क्योंकि जो आप सवाल का जवाब देने लगे हैं ना, ये उसमें आपकी गलती एक हो रही है, जो आप मैं पिक करने, इसलिए मैंने सवाल पूछ लिया। अगर कोई पूछे कि एस्थमा पे भी देखे ना, रिएक्टिव एयरवे डिजीज है, ठीक है, डिजीज है दोनों। इन दोनों में फर्क क्या है, बेसिक डिफरेंस क्या है? अगर कोई पूछे कि ये इन दोनों में क्या डिफरेंस क्या है? एस्थमा के अंदर सर बेसिकली हाइपर रिएक्टिव होते हैं एयरवेज, और हाइपर सिक्रीशन भी होती है इसके अंदर। नहीं, ये गलत गलत। आप सर देखें वहां सर इसमें रिवर्टिबिलिटी। रिवर्सिबिलिटी। रिवर्सिबिलिटी। जो एस्थमा है वो फुली रिवर्सेबल होता है, जो सीओपीडी होता है वो फुली रिवर्सेबल नहीं होता। उसके अंदर एक रिवर्सेबल कंपोनेंट होता है और एक इरिवर्सेबल कंपोनेंट होता है, ठीक है। तो हमें रिवर्सेबल कंपोनेंट के ऊपर फोकस करना होता है। तो याद रखें बात कि एस्थमेटिक पेशेंट में हो सकता है कोई चेस्ट एक्सरे में, एबीजीज में कोई फाइंडिंग ना हो, कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल नॉर्मल होगा, ठीक है। क्योंकि एस्थमा का तो जब अटैक होता है तो होता है ना, समझ आई? तो एस्थमा के अंदर एक्चुअली अगर उसको अटैक नहीं है ना, तो उसकी एक्सरे में उसमें कोई फाइंडिंग नहीं होगी। ये आप जहन में रखें बात। यही तो डिफरेंस है एस्थमा और सीओपीडी में। तो एस्थमा के अंदर चेस्ट एक्सरे में कुछ नहीं होगा, यस सीओपीडी में होगा ऑफ कोर्स, ठीक है। सीओपीडी में क्या कुछ होगा? सीओपीडी के अंदर सर जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन के साइंस मिलेंगे, जिसमें हॉरिजॉन्टल रिब्स होंगी, इंक्रीज इंटरकोस्टल स्पेस होगी, एयर ट्रैपिंग उसके अंदर नजर आ सकती है। ओके, और लोअर डायफ्राम होंगे। रिब्स ज्यादा काउंट हो रही होंगी। जी सर, ज्यादा काउंट हो रही होंगी, अच्छा, डायफ्राम उसके लोअर बाद हुआ होगा। इन्फेक्शन के साइन होंगे। इन्फेक्शन के क्या बिल्कुल हो साइन होते हैं? सकते हैं। प्लूरल एफ्यूजन हो सकती है। प्लूरल एफियन हो सकती है सर। प्लूरल एफ्यूजन में कैसे पता चलेगा? एंगल्स हैं वो ऑब्लिटरेट होगी। एंगल्स कोस्टोफेनिक एंगल जो है वो ब्लंट नहीं होंगे, ब्लंट हो जाएंगे, ब्लंट हो जाएंगे सर। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो हाइलर शेडो है वो प्रोमिनेंट होगा, बिल्कुल सर, ठीक ब्रोंकोवास्कुलर है। मार्किंग जो है वो हाइलर शेडो में इंक्रीज होंगी। उसके अलावा न्यूमोथोरिक्स आपको नजर आ सकता है, मतलब इन पेशेंट में न्यूमोथोरिक्स हो सकता है ना। स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरिक्स भी हो सकता है बाय द वे। इन पेशेंट्स में स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरिक्स भी हो सकता है। जो सीओपीडर्स होते हैं ना, उनमें स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरिक्स भी हो जाता है। तो ये भी आप जहन में रखें बात, कि हमने पहली बात की ना, एयर ट्रैपिंग हो रही है सारा कुछ, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा, अब हम इसको करें, टीबी के अंदर एक्सरे में क्या फाइंडिंग हो सकती है? टीबी के अंदर पैच हो सकता है कंसोलिडेशन का, मोस्टली एपिक्स के अंदर। फाइब्रोसिस, फाइब्रोटिक पैच हो, फाइब्रोसिस नजर आ सकता है Fibrosis, ना। उसके अंदर तो वैसे तो इसके बेसिकली वो अलावा ओपेसिटी नजर आएगी ना आपको, जी ठीक है, प्लूरल एफियन इसके अंदर भी टीबी के अंदर हो होती है, हो सकती है। सकती है। अच्छा, और इंटरस्टिशियल लंग डिजीज में क्या होंगी एक्सरे में फाइंडिंग? ऑपोजिट होगी ना इसमें, लंग छोटा हुआ होगा। लंग छोटा होगा या नहीं? लंग छोटा हुआ होगा सर, इसके अंदर भी फाइब्रोसिस की साइंस मिलेंगे। फाइब्रोसिस होगा, और बेसिकली जो है ना, ये जो जो टिपिकल जो पिक्चर होती है ना वो रिब्स वाली, वो एम्फाइसीमेटस में नजर आता है। इसके अंदर हो सकता है आपको वाइट सा एक आपको ओपेसिटीज नजर आ सकती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मुझे बताइए कि और कौन कौन से टेस्ट होंगे, सिर्फ नाम पहले लें। चेस्ट एक्सरे हो गया, एबीजीज, एबीजीज, स्पायरोमेट्री, एबीजीज, एवीजीज, ईसीजी, और जो स्पायरोमेट्री। स्पायरोमेट्री, ठीक है। तो स्पायरोमेट्री में जो क्वेश्चन जो आपसे वो पूछते हैं, ये आपको पता होना चाहिए कि रिस्ट्रिक्टिव वर्सेस ऑब्स्ट्रक्टिव। यस, अब एनीवन एल्स कोई और बोलना चाहता है प्लीज?
जी शाहिद, आप बस सर कैसे? टेस्ट की बात हो रही, टेस्ट तो यही नहीं टेस्ट स्पायरो टेस्ट एक्सरे ईसीजी और एबीजी। नहीं, स्पायरोमेट्री में रिस्ट्रिक्टिव वर्सेस ऑब्स्ट्रक्टिव, इसमें कैसे पता चलेगा? सर ऑब्स्ट्रक्टिव में रिड्यूस FEV1 और रिड्यूस FEV फोर्स वाइटल कैपेसिटी होगी, और लेकिन इनमें जो रेशो है ये भी रिड्यूस होगी, FEV1 और फोर्स वाइटल कैपेसिटी की रेशो रिड्यूस होगी, उसमें रिड्यूस नहीं होगी रिस्ट्रिक्टिव में बेसिकली देखे ना, ये रिस्ट्रिक्टिव के रेशो। अंदर ये दोनों कम हो जाएंगे, ठीक है? हाँ जी, सेम तो रहेगी। इसलिए ये रेशियो या तो नॉर्मल रहेगी या इवन इंक्रीज हो सकती है। जबकि जो ऑब्स्ट्रक्टिव होती है ना, उसमें FEE1 सिग्निफिकेंटली रिड्यूस होता है, ठीक है? और FVC नॉर्मल भी हो सकता है और बढ़ भी सकता है, ठीक है? तो इसलिए जो ये रेशियो है ये कम होगी, ठीक है? उसके इसके बाद अलावा सर जी FRC इंक्रीज होगी, रेजिडुअल वॉल्यूम इंक्रीज होगा ऑब्स्ट्रक्टिव इनमें, टोटल लंग कैपेसिटी ज़ाहिर इंक्रीज होगी। अच्छा, स्पायरोमेट्री से FRC पता डिफ्यूजन चलती है? नहीं, तो फिर क्यों बोला है आपने? हाँ नहीं नहीं, जाहिर इससे नहीं होता। ठीक है। वो कौन कौन से कैपेसिटीज होती हैं जो स्पायरोमेट्री से नहीं पता चलती? RC and total lung capacity. सॉरी, नहीं, ये फंक्शन जो भी रेजिडुअल वॉल्यूम, वॉल्यूम और फंक्शन। जो भी FRC residual कैपेसिटी, volume, total lung capacity. आई एम सॉरी, FRC, TLC और तीसरा आपने क्या बोला? Residual volume. नहीं मतलब बेसिकली जो भी देखें, एक और ज़हन में रखें, वॉल्यूम और कैपेसिटीज में फ़र्क ये होता है कि वॉल्यूम के अंदर एक वॉल्यूम होता है और कैपेसिटी के अंदर एक से ज़्यादा वॉल्यूम होता है, ठीक है? तो जो भी कैपेसिटी होगी ना जिसमें रेजिडुअल वॉल्यूम आएगा, एक तीसरी भी कैपेसिटी होती है, वो कौन सी होती है? क्लोजिंग कैपेसिटी का नाम सुना है? Closing capacity. ठीक है, क्लोजिंग कैपेसिटी में भी रेजिडुअल वॉल्यूम होता है, तो वो जी भी सर. नहीं मैयर हो सकती। इसके लिए कौन सा मेथड होता है? Body plethysmography. एक पता नहीं, हीलियम हीलियम, Helium dilation. Nitrogen ठीक है, washing. और बॉडी प्लेथिस्मोग्राफी। ये सिर्फ आपको इसके बारे में, ये पाकिस्तान के एग्जाम्स में आमतौर पे ये इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता क्योंकि यहाँ पे ये ट्रेंड ही नहीं है, लेकिन बहरहाल ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है? तो उसके बाद आपकी एक और इम्पोर्टेंट चीज़ होती है जो मेजर किया जाता है, जो एफर्ट इंडिपेंडेंट होता है, वो कौन सा पैरामीटर होता है? जी, स्पायरोमेट्री में एक कंपोनेंट होता है जो एफर्ट डिपेंडेंट होता है, और एक कंपोनेंट होता है जो एफर्ट इंडिपेंडेंट होता है। एफर्ट इंडिपेंडेंट कौन मिड सा होता है? Sir, मिड mid expiratory flow. मिड एक्सपिरेटरी फ्लो रेट, ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट है ये। 25 to 75%. जी अच्छा, उसके बाद स्पायरोमेट्री का बेड साइड कन्वर्टेबल Force क्या चीज़ होती expiratory है? flow. पीक एक्सपिरेटरी फ्लो रेट, ठीक है? ये एक बेड साइड, एक मैंने कभी आज तक देखा नहीं है बाय द वे। FEF 25 to 75. हाँ नहीं, वो तो मिड एक्सपिरेटरी फ्लो रेट हो गया ना। पीक एक्सपिरेटरी फ्लो रेट एक कोई डिवाइस होती है, मैंने देखी नहीं कभी हाउ द यूज, मगर पीक एक्सपिरेटरी फ्लो रेट से आपकी जो है ना, सिवियरिटी सिवियरिटी ऑफ एस्थमा, NCOPD, और प्रोग्नोसिस, ठीक है? एक एस्थमेटिक पेशेंट है, उसको आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं, या COPD का पेशेंट उसको आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो उसमें जो प्रोग्नोसिस हो रहा है ना, इंप्रूवमेंट हो रही है या नहीं, वो भी PFR से हम चेक कर सकते हैं, ठीक है? प्लस प्रोग्नोसिस इन द सेंस, जी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर. जी सर, आ रही। मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। मतलब बेसिकली जो है ना, सिवियरिटी आपको एज अ स्टैटिक पैरामीटर भी पता लगेगा कि भाई ये कितना सिवियर है, ठीक है? और आपको आपने जो रिस्पॉन्स वेजोडायलेटर्स, ठीक है, वो भी इसी से पता चलेगा, रिस्पॉन्स टू वेजोडायलेटर्स, ठीक है? वो भी इसके जो है ना, वो आपको वो गोल्ड क्लासिफिकेशन है, वो रट्टे वाली चीज़ है, वो आप देख लीजिएगा कितने
जो लेस देन 30 होता है वो मेरे ख्याल से सीवियर होता है, 30 से 50 जो है वो माइल्ड होता है, और सॉरी मॉडरेट होता है, और जो मोर देन 50 होता है वो माइल्ड होता है। मैं राइट? इसी तरह ही है ना? जी सर। यस माइल्ड, सर, बिल्कुल सर। मॉडरेट और सीवियर, ऑपोजिट, सॉरी, सीवियर, मॉडरेट और माइल्ड। अच्छा, लाइफ और उस थ्रेटनिंग में 30 हाँ, लाइफ थ्रेटनिंग असल में देखें, वो भी देखते हैं, वो उसकी ना जो है इंटरप्रिटेशन को भी हम देखते हैं। तो बहरहाल देखें, अच्छा, ईसीजी में क्या फाइंडिंग्स होती हैं? पीएफआर, ये जो है ना आपका जो स्पायरोमेट्री है, वो इसके अंदर आपसे अगर इतना भी, क्योंकि होता ही है कि ये अलग से तो कोई स्टेशन होगा नहीं, तो जब वो सीओपीडी की डिस्कशन हो रही होगी ना, तो अगर आपने इतना भी बता दिया है ना, तो दैट इज मोर देन एनफ। मतलब लाइक ये कि ये आपका जो है ना, ये फेलियर जो पॉइंट्स है ना, उनसे बचने के लिए यही सारी चीजें हैं कि आपको पता होना चाहिए रिस्ट्रिक्टिव ऑब्स्ट्रक्टिव का कैसे डिफरेंस होता है, क्या क्या उसके अंदर पैरामीटर्स होते हैं, कौन से टेस्ट होते हैं जो एफर्ट इंडिपेंडेंट, यही सवाल हैं जो आमतौर पे पूछे जाते हैं। ठीक है। अच्छा, बाकी है कि जो एबीजीज की फाइंडिंग है वो क्या होंगी, एक्सरे में, सॉरी, ईसीजी में क्या फाइंडिंग्स होंगी, इनके बारे में भी कुछ बात कर लेते हैं। एबीजीज में क्या फाइंडिंग होंगी सीओपीडी में? एस्थमा में तो मैंने आपको बता दिया है कि अटैक के अंदर क्या, अच्छा पहले चलें एस्थमा देख लेते हैं। एस्थमा में अटैक के अंदर क्या फाइंडिंग होगी? सर CO2 ज्यादा इनिशियली होगा कि कम होगा? हाइपोकार्बिया होगा, और ठीक है। इनिशियली हाइपोकार्बिया होगा। अगर ये नॉर्मलाइजेशन है ना, नॉर्मलाइजेशन अगर हो गई है या ज्यादा हो रहा है ना, तो इट्स अ साइन ऑफ इम्पेंडिंग फेलियर। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात है इसमें कि CO2 नॉर्मली एस्थमेटिक अटैक में कम होगी। अगर नॉर्मलाइजेशन हो रही है या अगर बढ़ रही है, तो इसका मतलब है इट्स साइन ऑफ इम्पेंडिंग फेलियर। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। सीओपीडी में क्या होंगी फाइंडिंग? क्या नाम है, पीएच? पीएच किस तरह की होगी? पीएच नॉर्मल हो सकती है। ठीक है, पीएच नॉर्मल हो सकती है, लेकिन PO2 कम होगी, PCO2 ज्यादा होगी, बाइकार्ब ज्यादा होगा, कंपनसेटरी तौर पे ना। तो इसके अंदर जो एक डिस्कशन में अक्सर औकात ये सवाल पूछते हैं, या ये PO2 का क्या क्या चक्कर होता है, और इससे ऑक्सीजन थेरेपी का इससे क्या ताल्लुक होता है? जी। नॉर्मली जो हमारी वेंटिलेटरी ड्राइव होती है वो किससे होती है? PO2 ऑक्सीजन से होती है या CO2 से होती है? CO2 सर। CO2 से। ठीक है। तो यहाँ पर तो क्रॉनिक हो रहा है हाइपरकैप्निया, तो ये CO2 की ड्राइव खत्म हो जाएगी। समझ आई? CO2 तो वैसे ही चपेड़े खा खा के, मतलब आप समझे कि वो ढीठ बन गया ना, तो वो CO2 का इफेक्ट नहीं हो रहा। अब यहाँ पर वो लो O2 इज ड्राइव, तो जब अगर आप हाई ऑक्सीजन देंगे ना, तो ये PO2 उसकी इंप्रूव हो जाएगी, तो पेशेंट कोलैप्स हो जाएगा। ठीक ठीक है। इसलिए COPD के पेशेंट्स में ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं देते। FiO2 शुड बी रिड्यूस्ड। तो वो FiO2 को एक प्रोग्राम्ड करके देने के लिए कौन सी डिवाइस होती है? वेंचुरी। वेंचुरी। ठीक है। तो वो जो वेंचुरी मास्क होता है वो इस पर्पज के लिए होता है। ये आपको टोक्स में स्टेशन आ सकता है वेंचुरी मास्क के बारे में, तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए इसका। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात थी इससे रिलेटेड। मैंने जैसे आपको बताया कि पीएच नॉर्मल भी हो सकती है। पीएच जो है वो इवन इन इन पेशेंट में अक्सर जो है ना वो अल्कोलोटिक भी पीएच आ सकती है, यानी कि एबीजीज ऑफ सीओपीडी कैन बी ऑफ बिग वैरायटी। ठीक है। तो इसलिए ये आप जहन में रखें। बहरहाल ये कि एसिडोटिक भी हो सकती है, ऑफ कोर्स अगर CO2 ज़्यादा होगा तो एसिडोटिक भी हो सकती है। तो ये जो आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि इसमें हो क्या रहा है। अगर पेशेंट कॉन्स्टेंट जो उस पर नेबुलाइजेशन हो रही हैं, तो और एबीजी में एक फाइंडिंग आपको मिलेगी पोटेशियम। ठीक है। पोटेशियम लो आ रहा होगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद इन पेशेंट में मैग्नीशियम थेरेपी दी जा रही होती है ना, तो मैग्नीशियम लेवल्स को भी देखना होता है। उसके बाद और क्या चीज़ें, हाँ, एबीजीज में ही नज़र आ रहा होता है, लेकिन अभी हम ब्लड वर्क्स में जाते हैं तो वो देख लेंगे। CBC के अंदर जो है वो हेमाटोक्रिट ज़्यादा होगा। तो हेमाटोक्रिट ज़्यादा होने का एनेस्थेटिस से क्या क्या इससे प्रॉब्लम हो सकती है?
विस्कोसिटी कम होगी सर, फ्लो कम होगा ब्लड विस्कोसिटी वेसल। ज्यादा होगी भाई, हाँ जी सॉरी, विस्कोसिटी ज्यादा होगी, फ्लो कम होगा सर। फ्लो कम होगा तो इससे क्या होगा? ये जिस तरह सिकल सेल डिजीज वगैरह में सिकलिंग के, अगर नहीं पेशेंट सिकल सेल भाई, डिजीज का तो थ्रोम्बो एम्बोलिज्म, Bleeding. सिकल कहाँ से आ गया? थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। सही सही। जितनी भी, जिसमें जितना फ्लो कम होगा उतना स्टेसिस होने का खतरा होता है, तो उससे एम्बोलिज्म होने का खतरा होता है। ठीक है, थ्रोम्बो एम्बोलिज्म, थ्रोम्बस बनने के, इसलिए जो सीओपीडी के पेशेंट्स होते हैं ना, इनमें बिल्कुल ये नहीं है कि आप उनको फ्लूइड ही ना दें, क्योंकि अगर आप बिल्कुल उनको फ्लूइड नहीं देंगे तो उनकी विस्कोसिटी ऑलरेडी ज्यादा है, तो डिहाइड्रेशन से उनको इट्स अ रिस्क फैक्टर। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, उसके बाद आपका जो और हीमोग्लोबिन सीओबीसी की बात हो गई, प्लेटलेट्स का इससे कोई खास ताल्लुक नहीं है। डब्ल्यूबीसी ज्यादा होंगे, डब्ल्यूबीसी ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, ईएसआर ज्यादा हो सकता है, सीआरपी ज्यादा हो सकता है। ठीक है, अच्छा, क्योंकि इसमें लिवर की प्रॉब्लम हो सकती है, सीओपीडीज में लिवर की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। सर हो सकती है, बैक कैसे? प्रेशर, कार्पल कार्पल्मोनेल की वजह से कंजेशन हो सकती है लिवर की, बैक प्रेशर। वेरी गुड। तो ठीक है, तो उसके अंदर आमतौर पे जो आपका जो है ना, हेपेटोसेलुलर जो फंक्शन है ना, वो एएलटी एएसटी वगैरह रेज हो सकता है। ठीक है, अच्छा, और इसके अलावा और कोई टेस्ट है ब्लड के अंदर जो हार्ट फेलियर से रिलेटेड होता है, जो अक्सर किया जाता है? बीएनपी। एएनपी, बीएनपी। ठीक है, और एक और भी होता है कोई प्रो, पता नहीं क्या, प्रो कैल्सिटोनिन नहीं, समथिंग, मुझे शायद बीएनपी ही है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा। तो ये जो ये है, ब्लड वर्क्स हो गए, चेस्ट एक्सरे हो गया। अच्छा, उसके बाद ना जो एक और फ्लो वॉल्यूम लूप्स हैं। ठीक है, वो फ्लो वॉल्यूम लूप्स ये एक ऐसी चीज है कि जो करते जाओ और भूलते जाओ। उसको ना मैं आपको उसको तस्वीरें दिखा के मैं आपको अलग से बताऊंगा इंशाल्लाह। ये अभी फिलहाल के लिए इसको छोड़ दें। ठीक है, फ्लो वॉल्यूम लूप्स का भी इसमें रोल होगा। अच्छा, उसके अलावा इन्वेस्टिगेशंस में और कोई चीज? सीटी। ठीक है, सीटी चेस्ट। उसके अलावा एको, एको का क्या रोल होगा? वही कॉर पल्मोनल और हार्ट फेलियर के रेफरेंस है। ठीक है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन और हार्ट फेलियर, अगर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो गया। ईसीजी में क्या फाइंडिंग होती है, वो कौन सा पैटर्न होता है? राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक हो सकती है, राइट एक्सिस डिविएशन हो सकती है। ठीक है, और रेट रिदम वाला तो है, फिर उसके बाद एक जो क्या होती है, पी पल्मोनेल। ठीक है, और क्या चीज होगी? एनीथिंग एल्स? एरिथमियाज हो सकते हैं। एट्रियल फिब्रिलेशन हो सकती है। ठीक है, और तो ये मोटी मोटी चीजें हैं कि जो आपकी सीओपीडी और एस्थमा। अच्छा, एस्थमा के रेफरेंस से ना आपको वो क्योंकि अब हम थोड़ा सा एस्थमा और सीओपीडी के बारे में बात करेंगे। एस्थमा में एक एलिमेंट जो होता है ना, वो उसका होता है एलर्जी का। ठीक है, तो जो एलर्जी के एलिमेंट में सीबीसी में कौन सी चीज देखते हैं? इयोसिनोफिल्स। इयोसिनोफिल्स। ठीक है, और इसमें इवन एलर्जी टेस्टिंग भी होती है। ठीक है, अच्छा, अब फ्यू डेफिनेशंस, आप एस्थमा को कैसे डिफाइन करेंगे? जी, व्हाट इज एस्थमा? Sir, asthma is basically airway inflammation and hyperreactivity in response to variety of stimuli, and it is clinically manifested as dyspnea, wheeze, and cough, ठीक है, and precipitated by pollen, dust, disprin. अच्छा, एस्थमा में देखें दो दो कंपोनेंट, एक एक तो हो गया रिवर्सिबल एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, दूसरे इसके अंदर हो गई ये जो है ना आपकी सिक्रीशन ज्यादा। दो चीजें हैं। ठीक है,
तो ये दो चीजों से मिलके ये बनेगा एक ब्रोंकोस्पैज्म, रिएक्टिव एयरवे, यानी कि किसी भी रिएक्शन, किसी भी स्टिमुलस की वजह से जो है ना आपकी जो ब्रोंकल मसल्स है ना वो कंस्ट्रक्शन हो रही है उनकी, एक बात हो गई। दूसरे सिक्रीशंस, तीसरी चीज इसके अंदर है रिवर्सिबिलिटी, और चौथी चीज है प्रोक्सिस्मल, होगा और ठीक हो जाएगा। उसके अंदर एलर्जिक कंपोनेंट एक है, और आपका जो मैंने आपको बताया था कि वेजोमोटर एक कंपोनेंट होता है, ये इसमें इसमें इन्होंने लिखा हुआ होगा यहाँ पर, वेजोमोटर कंपोनेंट होता है। दो इसमें होते हैं, एक जो टेम्परेचर से रिलेटेड होता है, जो अर्ली मॉर्निंग में ज़्यादा होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद और इसके अंदर, अच्छा ये जो है ना एस्थमा रिलेटेड, ये जो है आपकी एनसेड, जो इसके अंदर जो मेन कल्प्रेट होता है ना वो एस्पिरिन होता है। अब बाकी से किस हद तक होता है आई एम नॉट श्योर अबाउट, ठीक है। लेकिन ये इसमें ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बाकी कोई भी वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा वो उसमें प्रेसिपिटेट कर सकता है, एयरवे की मैनिपुलेशन अगर होगी तो उससे प्रेसिपिटेट कर सकता है। तो अभी हम, क्योंकि एनेस्थीसिया का कंडक्ट हम इसके बाद देखेंगे, लेकिन मैं आपको वैसे ही दिखा रहा हूँ कि कोई और चीज़ इसके अंदर ऐसी है या नहीं है। ड्रग्स हम लोगों ने एक दफ़ा डिस्कस की थी अभी मेरे ख्याल चंद दिन पहले, वो भी मैं दोबारा भी आपको बताता हूँ। जो है ना नॉर्मली आपके ब्रोंकोडायलेटर्स होते हैं। ब्रोंकोडायलेटर्स कौन कौन से होते हैं? साल्बुटामोल, बीटा टू बीटा टू एगोनिस्ट, ठीक है। बीटा तो बीटा एगोनिस्ट। बीटा टू एगोनिस्ट का जो है वो एनेस्थीसिया से क्या रेलेवेंस होगी, इनकी वजह से एनेस्थीसिया में क्या प्रॉब्लम होगी? टैकीरिथमियाज हो सकते हैं, ठीक है, प्लस हाइपोकलीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया, मास्कुलिन। यार ये जो है ना ये बुकिश बात है, ये प्रैक्टिकली कैसे होगी ये चीज? ये बीटा ब्लॉकर से होता है, बीटा एगोनिस्ट से नहीं होता। जो आप बताने लगे ना कि हाइपोग्लाइसीमिया का साइन जी जी मैस्क हो जाएगा, वो बीटा ब्लॉकर से होता है, बीटा एगोनिस्ट से नहीं होता, ठीक है। ये ठीक है। ये अच्छा, उसके बाद इसमें एक इम्पोर्टेंट दूसरा कौन सा ब्रोंकोडायलेटर होता एंटीकोलिनर्जिक सर, इप्राट्रोपियम। है? इप्राट्रोपियम आईवी दी जाती है? नहीं सर, इन्हें नेबुलाइज करके देते हैं। ठीक है, ये सिर्फ नेबुलाइज्ड होती है। अच्छा, एक इसमें मेरा क्वेश्चन है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें अगर आपको चूज करना हो तो बीटा एगोनिस्ट ज्यादा इफेक्टिव होता है या इप्राट्रोपियम छोटे बच्चों में? इप्राट्रोपियम। क्यों? उनमें सिंपैथेटिक सिस्टम अभी इतना डेवलप नहीं होता। हाई वेगल टोन होती है, ठीक है, और हाई सिंपैथेटिक लेवल पे। जो रिसेप्टर्स हैं वो इतने ज्यादा नहीं होते। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। अच्छा, स्टीरॉइड्स का क्या रोल होता है? स्टेरॉइड्स का सर एंटी इन्फ्लेमेटरी रोल होता है, और ये थोड़ा टाइम लेते हैं तो ये इफेक्ट करने में। मेंटेनेंस, इनका इमीडिएटली कोई इफेक्ट नहीं ये होता, मेंटेनेंस में मेंटेनेंस में होता है, मेनली यूज होता है। मेंटेनेंस में होता है। मेंटेनेंस में और कौन सी दवाइयां दी जाती हैं? मेंटेनेंस में सर प्रिवेंटिव मेडिसिन भी यूज की जाती हैं, लाइक जिसके अंदर ये एक तो ल्यूकोट्राइन स्टीरॉयड हो गए ना, इनहिबिटर्स हैं, या ओरल, मोंटेलोप्लास्ट। या ओरल होगी, या इवन अटैक के अंदर भी आप आईवी, आईवी भी दे सकते हैं, ओरल भी दे सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट होती हैं जो आपके, जो मॉन्टिल्यूकास्ट होती है, ठीक है। ये ये जो हैं ये आपकी मेंटेनेंस में होते हैं। मेंटेनेंस में और कोई एक दवाई होती है, थियोफाइलिन पेशेंट्स यूज कर होते हैं बहुत। क्रोमलिन। जो थियोफाइलिन है ना एक्चुअली वो अमाइनोफाइलिन, वो एक्यूट अटैक में भी होती है, ठीक है। एक्यूट अटैक में अमाइनो, हालांकि इसका रोल अब कंट्रोवर्शियल है, इससे एरिथमियाज भी होते हैं, लेकिन एक्चुअली इसका ना डायाफ्राम की, ये मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है कि ये किस तरह, मुझे भी याद नहीं आ रहा कि ये कैसे एक्ट करता है, लेकिन ये डायाफ्राम की टोन भी बढ़ाता है। तो इससे अमाइनोफाइलिन का अभी भी आप बता सकते हैं कि जो मतलब इसमें एक ट्रेडिशनली इसको यूज किया जाता था, लेकिन इससे एरिथमियाज भी हो सकते हैं, टैकीकार्डिया भी होगा, एरिथमियाज भी होंगे, ठीक है। उसके अलावा एक्यूट अटैक में जो मैंने ये जो है वो मैग्नीशियम सल्फेट का भी रोल है, ठीक है। स्मूथ मसल रिलैक्सेशन करता है ये, ठीक है। तो मैग्नीशियम से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए कि
इसके किस तरह लेवल्स को मेंटेन करते हैं, यूरिन आउटपुट से होता है, और एनेस्थीसिया की इसकी रेलेवेंस आपको पता ही है। हम लोगों ने कल परसों ये बात की थी कि मैग्नीशियम की वजह से एनेस्थीसिया मसल रिलैक्सेंट्स का इफेक्ट प्रोलॉन्ग होगा। लेकिन बहरहाल मैग्नीशियम, उसके अलावा एक और जो फर्दर आगे जो है वो नाइट्रिक ऑक्साइड, और फिर फर्दर अगर बहुत ज़्यादा होता है Inhaled तो anesthetics. एन एक्मो, ठीक है, और इनहेल्ड एनेस्थेटिक्स। अब इसके अंदर एक चीज आप लोगों को मैं क्लैरिफाई कर दूं, मुझे ये बताइए कि आइसोफ्लोरेन से या डेस्फ्लोरेन से इंडक्शन की जा सकती है या नहीं? नहीं करनी चाहिए, इनहेलेशनल इंडक्शन नहीं करनी Theoretically चाहिए, तो नहीं करनी चाहिए. क्यों? इरिटेंट है। इरिटेंट है। इरिटेंट टू व्हाट? इरिटेंट टू अपर एयरवे या अपर लोअर Upper एयरवे? airway से. ठीक है, तो इंडक्शन के वक्त जो है Upper वो airway. आप ना यूज करें। लेकिन ऑल इनहेलेशनल एजेंट्स हैव डोज डिपेंडेंट ब्रोंकोडायलेटेशन। ब्रोंकोडायलेशन। ठीक है, तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आपको क्लियर होना चाहिए। इसमें मेरा एक क्वेरी है, क्योंकि हम लोग तो यहाँ पे बहुत ज्यादा यूज करते हैं डेस्फ्लोरेन एलएमए। मुझे आज तक समझ नहीं आई कि ये एलएमए डालने के बाद डेस्फ्लोरेन देना कैसे सेफ है। बहरहाल मैं खुद यूज करता हूँ, मुझे आज तक कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन एक्चुअली अगर आप उसको थ्योरेटिकली इरिटेशन वाली बात करें तो फिर तो इससे भी इरिटेट होना चाहिए। लेकिन मेरा जहाँ तक ख्याल है कि ये ना, जब डेप्थ जो लाइट प्लेन ऑफ एनेस्थीसिया होता है ना, उसके अंदर ये आई थिंक प्रॉब्लम करती है। ठीक है, कि एयरवे मैनिपुलेशन इन लाइट प्लेन ऑफ एनेस्थीसिया के अंदर प्रॉब्लम होती है। बहरहाल ये थोड़ा सा एक ग्रे एरिया है जो मुझे आज तक कहीं क्लियरली समझ नहीं आया कि जब सुप्राग्लॉटिक एयरवे डिवाइस आपने डाला है तो ग्लॉटिस तो अभी भी आपका इरिटेट हो सकता है ना। ठीक है, तो उसके अंदर फिर डेस्फ्लोरेन क्यों नहीं इरिटेट करती? वो तो मैं पता नहीं कितने सालों से हम लोग यूज कर रहा हूँ डेस्फ्लोरेन, या पाकिस्तान में हम आइसोफ्लोरेन यूज करते हैं, तो वो तो फिर एलएमए के साथ सर नहीं। हाँ, रैपिड अगर इंडक्शन करें तो उससे मतलब नहीं नहीं इनिशियली नहीं, कंसंट्रेशन। आप मेरा क्वेश्चन समझ आ गया ना आपको? ये ग्रे एरिया है ये, क्योंकि दोनों जी बातों सर, में समझ ये दोनों बातों में कन्फ्लिक्ट है। क्योंकि जो थ्योरेटिकली बात कहते हैं कि डेस्फ्लोरेन जो है एयरवे को इरिटेट करेगी, आइसोफ्लोरेन एयरवे को इरिटेट करेगी, तो भाई एलएमए डाल के क्यों इरिटेट नहीं कर रही? आई डोंट नो, मेरे पास इस सवाल का जवाब नहीं है। आप अपने किसी पाकिस्तान में किसी से, टीचर से, किसी सुपरवाइजर से ये सवाल पूछें कि आइसोफ्लोरेन डेस्फ्लोरेन तो इरिटेंट है, तो जब हम एलएमए डालते हैं तो वो तो सुप्राग्लॉटिक तो फिर भी रहती है, क्योंकि अपर एयरवे की तो इरिटेशन फिर भी कर सकती है। तो उसकी वजह से लेरेंगोस्पैज्म भी हो सकता है। ब्रोंकोस्पैज्म को चले आप छोड़ दें एक लम्हे के लिए, लेरेंगोस्पैज्म तो फिर भी हो सकता है। इसलिए मैं आपको अपना बता रहा हूँ, आई ऑलवेज यूज मसल रिलैक्सेंट विद एलएमए। ठीक है, ये मैं आपको प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, जबकि मैंने मेजॉरिटी अपने कोलीग्स को देखा है कि दे डोंट यूज। वो कहते हैं एलएमए के साथ मसल रिलैक्सेंट की क्या जरूरत है। लेकिन मेरे हिसाब से मैं थ्योरेटिकली इसी रीजन की वजह से कि अगर आप एलएमए यूज कर रहे हैं और आप डेस्फ्लोरिन यूज कर रहे हैं, तो अगर वो इरिटेशन की वजह से लेरिंगोस्पैज्म हो सकता है। अगर आपने मसल रिलैक्सेंट दिया हुआ है तो ये चांसेस कम हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं आई सर ऑलवेज ये यूज। जी, सिर्फ डेस्क के साथ ये है कि बाकी सब रिलेशनल के साथ भी एलएमए का? नहीं नहीं, देखो हेलोथेन और सीवोफ्लोरेन तो इरिटेंट नहीं है ना। ठीक है, हाँ तो ये तो आप इनहेलेशनल सही। रिडक्शन के लिए भी यूज करते हैं। तो डेस्फ्लोरेन और जी आइसोफ्लोरेन तो इनहेलेशनल रिडक्शन के लिए आइडियली नहीं यूज करते ना। तो मेरा ये सर कंसर्न है। मैं तो मसल रिलैक्सेंट जब भी मैं एलएमए डालता हूँ तो मैं मसल रिलैक्सेंट जरूर देता हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग के अंदर ये कॉन्सेप्ट है। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, क्योंकि काउंटर आर्ग्यूमेंट ये मेरे दिमाग में है, मेरे पास इसका क्लियर आंसर नहीं है, क्योंकि ऐसी बातें आपको किताबों में नहीं मिलती। ठीक है, तो ये एक चीज है जो कि ग्रे एरिया है। आप लोग अगर, बल्कि आप पूछेगा अगर आप लोगों को इसका क्लियर आंसर कोई बताए तो वो मुझे भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, ये एक इसमें इम्पोर्टेंट बात है। उसके बाद जी, अच्छा, एक्मो के बारे में कुछ पता है? एक्मो क्या होती है? सर इसमें बेसिकली एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन है इसका नाम। ये तो बाईपास की तरह होता है। ठीक है, इसमें बाईपास की तरह होता है, बाईपास की लेकिन इसके अंदर तरह आर्टिफिशियली ऑक्सीजनेट कर देता है ब्लड। हार्ट की पंपिंग होती है। सिर्फ जो है ना, लंग्स को बाईपास, मतलब लंग्स के जो फंक्शन है उसको आर्टिफिशियली मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन की जाती है इसमें। ये ऐसे पेशेंट के जिसमें गैसियस एक्सचेंज नहीं हो पा रही फॉर एनी गुड रीजन, और अगर ये ब्रोंकोस्पैज्म इतना सीवियर है, जैसे कोविड के टाइम में एक्मो का यूज था। ठीक है,
तो ये उसका रोल है। नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो पल्मोनरी वेजोडाइलेटर है, तो उसका भी सिवियर ब्रोंकोस्पैज्म में या एयरवे की प्रॉब्लम्स के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड भी यूज की जाती है, एआरडीज में भी यूज किया जाता है। तो ये आपको जस्ट एज अ स्टॉक आंसर। अच्छा, केटामीन का क्या रोल होगा एस्थमा में? ब्रोंकोडाइलेटर है सर, किस डोज पे? आईसीयू सेटअप, लो लो डोज 0.25 से लो अच्छा, डोज पता मिलीग्राम। नहीं यार ये कितनी डोज पे ब्रोंकोडाइलेटेशन करता है, लेकिन याद रखें बात कि बिल्कुल आपने स्टॉक आंसर देना है। केटामीन की वजह से प्रॉब्लम क्या होती है? ठीक है, आपने कह दिया जी ब्रोंकोडाइलेटर है, ठीक है, लेकिन और इसकी प्रो Secretion. कॉन्स क्या है? एयरवे सिक्रीशन इंक्रीज रिफ्लेक्सेस, करेगा। एयरवे रिफ्लेक्सेस को ब्लंट करता है ये? नो, नहीं ठीक है। नहीं करेगा। अच्छा, उसके बाद जो सिक्रीशंस भी बढ़ा रहा है, तो इट्स नॉट अ गुड थिंग। आई डोंट नो कि इसको ब्रोंकोडाइलेटेशन किस तरीके से। तो केटामीन आप जो देते हैं, ये केटामीन को ज़हन में आप रखें बात कि एक तो आपको पता है, आप लोग तो वो दवाई यूज़ नहीं करते, हम लोगों ने तो वो बहुत, अभी भी है पाकिस्तान में शायद अवेलेबल होगी, लेकिन दुनिया में मेजॉरिटी जगहों पे ये थायोपेंटोन को इन्होंने पकड़ के फारिग कर दिया है। थायोपेंटोन के साथ भी यही प्रॉब्लम थी। ये जो थायोपेंटोन है ना, वो एयरवे रिफ्लेक्सेस को ब्लंट नहीं करते थे, तो लाइट प्लेन ऑफ एनेस्थीसिया में इससे एयरवे मैनिपुलेशन में प्रॉब्लम होती थी। इसी तरीके से केटामीन का भी यही है। जो प्रोपोफोल है उसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि वो एयरवे रिफ्लेक्सेस को ब्लंट कर देता है, ठीक है। तो एक्चुअली दैट्स व्हाई जो है वो आइडियल एजेंट इज प्रोपोफोल ऑफ कोर्स, क्योंकि वो एयरवे रिफ्लेक्सेस को ब्लंट करता है। तो ये आपको इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए इस बारे में ना। तो क्योंकि वो जब आपसे अगर वाइवे में डिस्कशन कर रहे हैं ना, तो आप उनको केटामीन को बहुत जोर और शोर से ब्रोंकोडाइलेट, आप ये उनसे कहें कि केटामीन इज सपोज टू हैव ब्रोंकोडाइलेटेशन बट इट हैज सम अनवांटेड इफेक्ट्स, सो इट्स अ क्वेश्चनेबल। ये इट्स नॉट अ वेरी सेफ थिंग कि एयरवे रिफ्लेक्सेस को वो ब्लंट नहीं करता और सिक्रीशंस इससे बढ़ सकती हैं। तो इसलिए जो पुराने एनेस्थेटिस्ट है ना, वो जब भी केटामीन देते हैं उसके साथ एट्रोपिन मिक्स करके देते थे। जो मैंने शुरू की थी 20 साल पहले एनेस्थीसिया की का, बिल्कुल, तो उस जमाने में मैंने एनेस्थेटिस्ट को देखा था, वो केटामीन के साथ एट्रोपिन को मिक्स करके देते थे। ग्लाइकोपाइरोलेट तो अवेलेबल ही नहीं होती थी उस जमाने में। तो बहरहाल ये एक आपको दिमाग में ये बात होनी चाहिए, ठीक है। तो ये इनहेलेशनल एजेंट्स के बारे में भी हमने बात कर ली। अच्छा, और कौन कौन सी, इसी वक्त ही हम डिस्कस कर लेते हैं, हम सारी बात कर रहे हैं, तो वो कौन कौन सी मेडिकेशंस होती हैं जो एस्थमा में कॉशियसली देते हैं या नहीं देते, या क्या उनका चक्कर होता है? एक तो हमने एनसेड्स की बात कर ली, ठीक है। एनसेड्स का क्या लिंक होता है एस्थमा से? सर एस्प्रिन इंड्यूस्ड अस्थमा है बेसिकली, जो प्रूवन है कि एस्प्रिन की वजह से तो अटैक हो चलो, सकता है। हो गया। और एनसेड्स का क्या रोल बनता है आपके ख्याल से? तो सर मेरा ख्याल है कि जो प्रोस्टाग्लैंडिन की प्रोडक्शन को कम जो करते हैं। जो वेजो डायलेटिंग प्रोस्टाग्लैंडिन्स होती है ना, उस उनके साथ इनका कोई रिलेशनशिप होता है। लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ कि मैंने, मतलब मुझे जब भी मौका मिलता है मैं तो दे देता हूँ, क्योंकि हमें आसपास, अपने आस पास वाले लोगों से भी कई दफा होता है। मेरे मेरे हिसाब से एस्मा का जो डायग्नोसिस है ना, वो सबसे ज्यादा, जो यहाँ पे सऊदी अरब में, तो किसी पेशेंट को कभी जिंदगी में सैल्ब्यूटामॉल से नेबुलाइजेशन अगर मिली हो ना, तो वो उसको पकड़ के एस्थमाटिक लिख देते हैं। हालांकि एस्थमा इज नॉट सिंपल, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ इज नॉट एस्थमा। किसी को बहुत ज्यादा चेस्ट इन्फेक्शन हो रहा है तो उसके अंदर भी उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकती है, दैट्स नॉट एस्थमा, वो मिसडायग्नोज होता है। मेरा ख्याल है कि जो प्योर एस्थमेटिक पेशेंट होंगे ना, उनके अंदर एनसेड से प्रॉब्लम होगी, लेकिन जो खाली डाउटफुल डायग्नोसिस वाले हैं उनमें एस्थमा में नहीं होगा। अच्छा, इसके अलावा और कौन सी दवाइयां हैं? व्हाट अबाउट मसल रिलैक्सेंट, कौन सा सेफ होगा? सिस एट्राक्यूरियम। और एट्राक्यूरियम देंगे? एट्राक्यूरियम तो सर नहीं देंगे, वो हिस्टामिन रिलीज कराता है। ठीक है, हिस्टामिन रिलीज की वजह से एस्थमा है, सिसट्राक्यूरियम और ये वीक्रोनियम रोकोरोनियम दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एनाल्जीसिया, एनाल्जेसिक मेडिकेशंस में और कोई है जो एस्थमा में? मॉर्फिन का कोई होगा प्रॉब्लम? हाँ जी, अवॉइड करेंगे सर। मॉर्फिन भी हिस्टामिन रिलीज करती है ज्यादा, ठीक है। अच्छा, पैरासिटामॉल में कोई प्रॉब्लम नहीं, एनसेड्स की हमने बात कर ली, केटामिन की हमने बात कर ली। लाइडोकेन का क्या रोल होगा? लाइडोकेन सेफ है सर।
लाइडोकेन सेफ भी है, बल्कि लाइडोकेन देने का क्या एडवांटेज होगा? सर लाइडोकेन प्रिवेंट करेगा। पेन किलर एनाल्जेसिक भी है। ये सर आपका जो है ओपियोइड ना की वो कम हो मेम्ब्रेन जाएगी रिक्वायरमेंट। स्टेबलाइजिंग करेगा ना, ओपियोइड मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग करेगा, तो ये एक्चुअली ब्रोंकोस्पैज्म को प्रिवेंट भी करेगा। ना सिर्फ सिंपैथेटिक रिस्पांस को ये ब्लंट करेगा, इससे आपकी जो है वो ब्रोंकोस्पैज्म के भी चांसेस कम होंगे, क्योंकि ये आप समझ लें कि ये एक रिलैक्स एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा। तो लाइडोकेन इज आल्सो बीइंग यूज्ड नॉट ओनली फॉर लारिंगोस्पैज्म, इट विल हैव सम इफेक्ट ऑन प्रिवेंशन ऑफ ब्रोंकोस्पैज्म एज वेल। ठीक है। इसके अलावा और कॉमन जो प्रेसिडेक्स है उसका उसका सीओपीडीएस में फायदा होगा या नुकसान होगा? सर कॉन्शियस सिडेशन होती है, उसमें नुकसान तो नहीं होना चाहिए उसमें। रिस्पैरिटी डिप्रेशन नहीं होता बेटा इससे। अच्छा, मुझे एक बात बताना, नहीं रिस्पैरिटी होता। डिप्रेशन का क्या मतलब होता है? ये भी एक बड़ी एक कॉमन चीज है, मैंने कई लोगों से मैं पूछता हूँ, उनको ये भी नहीं पता होता। व्हाट डू यू मीन बाय रिस्पैरिटी डिप्रेशन? सर प्रॉब्लम इन रेस्पिरेटरी वेंटिलेशन। रेट कम हो जाएगा एक या बंदा बताए। टाइडल वॉल्यूम कम हो जाना। ये सैफ आप बोल रहे थे, आप बोलो। सर वेंटिलेशन का प्रॉब्लम हो, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन का प्रॉब्लम हो, क्या मतलब है आपका? वो रिस्पेक्ट डिप्रेशन। तो मतलब पेशेंट प्रॉपर्ली ब्रीथ नहीं कर रहा, ऑक्सीजनेशन का मसला है और कार्बन डाइऑक्साइड निकालने का मसला है, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन दोनों का मसला है। देखें, ये अब आपने जरा सोचें जरा, क्या आप आंसर सही दे रहे हैं? हम्म। सोचें जरा। ये देखो, अभी हमने बात की थी जो होते ही है वेंटिलेटरी ड्राइव की बात है ये। ठीक है। वेंटिलेटरी ड्राइव जो होती है, या वो CO2 से होती है या वो ऑक्सीजन से होती है। ठीक है। तो ये जो दवाइयाँ होती है ना, जो आपकी जैसे बेंजोडाइजेपीन है या ओपियाइड्स हैं, ठीक है, या इन दोनों का अगर कॉम्बिनेशन है तो इनका साइनर्जिस्टिक इफेक्ट है। ये जो सारी दवाइयाँ होती है ना, ये वेंटिलेटरी ड्राइव को कम करती हैं। इसको कहा जाता है रिस्पिरेटरी डिप्रेशन। समझ आई बात? सही। तो जो जी जी। प्रेसिडेक्स है ना, वो रिस्पिरेटरी डिप्रेशन नहीं करती। समझ आई? वो रिस्पिरेटरी जी डिप्रेशन माइल्ड डोज में, अगर वो भी आपने बहुत ज्यादा दे दी है तो उससे भी हो जाएगी। लेकिन जो माइल्ड, ये तो माइल्ड डोजेज में अगर आपने बेंजोडाइजेपिन सेपरेट दिया है और या आपने ओपियाइड सेपरेट दिया है तो उसका लेस इफेक्ट होगा। लेकिन आपने ये अगर कॉम्बिनेशन दे दिया है ना, तो 1+ जो एक ये आपको जस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। एक होता है समेटिव इफेक्ट या एडिटिव इफेक्ट, सिनर्जिज्म। और एक होता है साइनर्जिज्म। तो 1+1 = 2 हो गया सम, और 1+1 इज इक्वल टू मोर देन 2 या 2 3 हो गया ना, तो ये आपका साइनर्जिस्टिक इफेक्ट। ठीक है। तो ये रिस्पैरिटी डिप्रेशन का मतलब ये होता है। ठीक है। एक रिस्पैरिटी डिस्ट्रेस है, वो और चीज है। रिस्पैरिटी डिप्रेशन है, इट्स विद रेफरेंस टू वेंटिलेटरी ड्राइव। ऑक्सीजन या जो CO2 का जो रिस्पॉन्स आना चाहिए वो नहीं आ रहा, दैट इज कॉल्ड अ रिस्पैरिटी डिप्रेशन। जैसे आपने जो आपने इनहेलेशनल एजेंट दिए हैं, तो इनहेलेशनल एजेंट से इनिशियली जो है वो रिस्पिरेशन पे इफेक्ट होता है? नहीं होता ना। पेशेंट तो इनहेलेशन इंडक्शन आप कर रहे हैं, पेशेंट तो सांस लिए जा रहा है। जब वो बहुत हाई डोज हो जाती है, हाई मैक हो जाती है, तब रिस्पिरेशन पे इफेक्ट होता है। जबकि आप इसी पेशेंट में अगर आपने हाई डोज बेंजोडाइजेपिन दे दिया है या आपने हाई डोज ओपिएट्स दे दिए हैं, तो उनको ज्यादा रिस्पिरेटरी डिप्रेशन होता है। समझ आई बात? तो ये बेसिकली एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम के अंदर अगर आप ये गलत जुमला बोलेंगे तो बैड इंप्रेशन हो जाएगा। ये कोई खाली एक इतनी सी बात पे कोई फेल नहीं करेगा। क्योंकि मैंने किसी बंदे से पूछा था, उस बंदे को ये नहीं पता था कि ब्रोंकोस्पैज्म वर्सेस लेरिंगोस्पैज्म का क्या डिफरेंस होता है। वो माशाल्लाह उसको FCPS पास किए हुए भी कई साल हो गए, लेकिन ही वाज जस्ट लिटरली क्राइंग एंड ही वाज सेइंग कि मुझे तो खामा का एग्जामिनर ने फेल कर दिया। और जब मैंने उससे पूछा तो उसको बेचारे को ब्रोंकोस्पैज्म लेरिंगोस्पैज्म का डिफरेंस क्लियर नहीं पता था। तो ये ज़हन में रखें कि कुछ चीज़ें वहाँ पर एक लॉन्ग केस के अंदर, वहाँ पर नंबर नंबर शंबर तो अब आने लगे हैं मार्केट में, कि इतने नंबर पे फेल कर दिया। लोगों को ये डिप्रेशन हो जाता है कि जी हमें तो इतने नंबर पे फेल कर दिया। तो नंबर शंबर को छोड़ दें, एग्जामिनर आपको सूंघ के बता देगा कि ये बंदा पास होने वाला है या नहीं। वो आपकी शक्ल देख के, आपकी बॉडी लैंग्वेज देख के बता देगा कि ये इस बंदे को आता है या नहीं। तो अगर आपने वहां पर कोई ब्लंडर मार दिया तो फिर आप पास नहीं हो सकते। ये ज़हन में रखें बात।
और ये इस किस्म की जो बेसिक कॉन्सेप्ट वहां पर याद रखें। कोई बंदा मुश्किल मुश्किल चीजों से फेल नहीं होता। जैसे मैं आपको अभी याद आ गया, इसी से बात कर रहा हूँ तो मैं आपको याद आ गया। अभी तो साइंटिफिकली तो हम बात कर रहे हैं ना, ये लंग फंक्शन, ये क्या उसको कहते हैं, लंग वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज, और जो है वो स्पायरोमीट्री। एक जमाने में एक फजूल किस्म का क्वेश्चन था जो एग्जामिनर्स को बहुत ज्यादा पसंद था। वो क्या क्वेश्चन था? ये मैच टेस्ट। ठीक है, ये मैच टेस्ट क्या होता है? सर ये ब्लो कराते हैं तो उससे आप यूज करते हैं इसे एज अ सरोगेट फॉर पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट। ये जब अगर वो आपसे टेस्ट पूछे ना, तो वहां पे टेस्ट करवा के ना आपने क्लैपिंग करनी है। एग्जामिनर को शाबाश देनी है कि आपने मुझसे दुनिया की सबसे बेस्ट इवैल्यूएशन कर ली। ये भी वही वाली है कि अल्लाह हमारे एग्जामिनर्स को हिदायत दे। लेकिन बहरहाल पुराने, पता नहीं वो कौन किस तरह के लोग हैं, वो मुझे तो हैरानी होती है उन लोगों के बारे में सोच के कि वो दुनिया कहाँ पहुंच गई है। वो बेवकूफ़ों की तरह मैच टेस्ट पूछ रहे हैं। ठीक है, तो लेकिन मैच टेस्ट पे कोई फेल नहीं करेगा, ये मैं आपको दावे से कह रहा हूँ। ये वो सिर्फ आपको तंग करने के लिए पूछ सकते हैं। वो आपको आपको सिर्फ आपका मेंटल, आप किसी सवालों से घबरा तो नहीं रहे हैं, वो ये इसलिए पूछ सकते हैं। इस पे कोई फेल नहीं करेगा, लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उन पे फेल हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको जस्ट मैं जहाँ जहाँ पे जो बातें आती हैं वो मैं आपको बताता जाता हूँ। ठीक है, तो अच्छा, ये ज़हन में रखें बात आप। अच्छा, आप एक और बात मुझे बताएं कि जो एस्थमेटिक, सॉरी, ये जो एस्मा या सीओपीडी का जो पेशेंट्स हैं, उनमें इंडक्शन कैसे करनी चाहिए? जी, सर क्वेश्चन समझ नहीं सर, क्या कैसे करनी चाहिए? एस्मा सीओपीडी के पेशेंट में इंडक्शन में क्या क्या आपने एहतियात करनी है, कैसे इंडक्शन करनी चाहिए? सर एक तो जो पहले वो ले रहा है, मतलब मेडिकेशन ले रहा है, वो मेडिकेशन हम कंटिन्यू रखेंगे, नहीं नहीं, प्री ये आप ऑक्सीजनेट करेंगे। अच्छा, टू द पॉइंट इंडक्शन करते वक्त आपने क्या ख्याल रखना है? वो डीप तो लेन एक, में इंटूबेट वो भी हम करेंगे। बात करेंगे, वो हम ऑप्टिमाइजेशन और प्री ऑप प्रिपरेशन के बारे में बात कर लेंगे, लेकिन इंडक्शन करते हुए क्या बात आएगी? सर लेरिंगोस्कोपिक रिस्पांस टू जो है वो उसको हम अवॉइड आप करेंगे, उसको डीप ब्लंट प्लेन करने में के लिए। करेंगे। ठीक है, आप लाइट जी प्लेन ऑफ एनेस्थीसिया में आप उसको मैनिपुलेट नहीं करेंगे, नहीं तो ब्रोंकोस्पैज्म होने के चांसेस होंगे। यही एहतियात आपने एक्सट्यूबेशन के वक्त भी करनी है। ठीक है, ये बात है, ये इंपॉर्टेंट बात है। आप अगर उसको लाइट प्लेन ऑफ एनेस्थीसिया में करेंगे तो उसके अंदर डीप प्लेन में आपको करना चाहिए। ठीक है, एनीथिंग एल्स? और कोई इसके अलावा चीज? अगर आप डीप प्लेन में करेंगे तो वैसे ही एक पेशेंट को अगर आपने डीप प्लेन ऑफ एनेस्थीसिया में एक्सट्यूबेट किया तो कोई प्रॉब्लम हो सकती है? जी सर, पेशेंट की एयरवे रिफ्लेक्सेस अभी प्रॉपरली नहीं रिस्टोर हुई होंगी, उसके अंदर एस्पिरेशन के चांसेस होंगे। एस्पिरेशन के चांसेस हो। ठीक है, और आपको जो है वो अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। तो ये आपने इस चीज़ को ध्यान रखना है, इस चीज़ को। ठीक है, अच्छा, अभी हमने दो बातें करनी है, एक प्री ऑप ऑप्टिमाइजेशन। तो प्री ऑप ऑप्टिमाइजेशन, एस्मा तो एक कंपोनेंट है सीओपीडी का। ठीक है, तो कौन कौन से मैनूवर्स होते हैं जिनसे आप एक पेशेंट को स्टेबलाइज कर सकते हैं प्री ऑपरेटिव पीरियड में? ऑफ कोर्स जैसे जैसे टाइम होगा वैसे वैसे आप उसको ऑप्टिमाइज करेंगे। अगर ज़्यादा टाइम होगा तो आप ज़्यादा चीज़ें, लेकिन क्या क्या मैनूवर्स हैं आपके पास? एक सीओपीडी का पेशेंट है, उसको प्री ऑपरेटिव ऑप्टिमाइजेशन उसकी करनी है। आपने उसको हिस्ट्री की स्मोक ली, एग्जामिनेशन किया, इन्वेस्टिगेशन किया, आपने क्वांटिफाई कर लिया इसमें। अब आप चाहते हैं कि इम्प्रूवमेंट आ जाए, तो कौन कौन सी चीज़ें आप यूज़ करेंगे? स्मोकिंग क्विट करवाएंगे। वेरी गुड, स्मोकिंग हो गई नंबर 1। नंबर 2? चेस्ट फिजियोथेरेपी। चेस्ट फिजियोथेरेपी। जो मेडिकेशंस है उनके डोज को ऑप्टिमाइज करेंगे। अगर पल्मोनोलॉजिस्ट कोई रिव्यू या ओपिनियन चाहिए तो वो वेरी भी। गुड, मेडिकेशंस हो गई, पल्मोनोलॉजी का रिव्यू हो गया, और
कोई सर चेस्ट और कोई इन्फेक्शन से ins- एक मिनट, चेस्ट इन्फेक्शन का होगा कोई सर चेस्ट एंटीबायोटिक्स? इन्फेक्शन अगर है तो जी बिल्कुल। एंटीबायोटिक्स होगी, ठीक है। आपने स्पूटम का कल्चर करवाया और आपने जो आपको करने की जरूरत है वो आपने कर दिया, प्लस स्टीरॉइड्स देंगे, स्टीरॉइड्स का होगा कोई रोल? ठीक है, आप स्टीरॉइड्स का आप शॉर्ट कोर्स दे सकते हैं, चेस्ट फिजियोथेरेपी प्लस इंसेंटिव स्पायरोमेट्री, ठीक है। अच्छा, इन्फेक्शन के ही, इन्फेक्शन या प्लूरल फ्यूजन के लिए आप प्लूरल फ्यूजन का प्लूरल टैप हो सकता है, ठीक है। अच्छा, इसी के साथ ही जब चेस्ट फिजियो की जाती है ना, या इंसेंटिव स्पायरोमेट्री की जाती है, या प्लूरल टैप किया जाता है, तो उसी के साथ एक चीज और आती है, वो होता है म्यूकोलेटर साशे, म्यूकोलेटर प्लस पोस्चरल ड्रेनेज, ठीक है। आप उसकी इंसेंटिव स्पायरोमेट्री की, आपने उसकी एंटीबायोटिक दिए, आपने उसको स्टीरॉयड दिया। एक कंपोनेंट जो इसका रिजल्ट में आता है हार्ट से रिलेटेड, वो कुछ किया जा सकता है? हार्ट फेलियर को का जो ट्रीटमेंट है उसको आप देखेंगे, डायूरेटिक्स हैं, ठीक है, डायूरेटिक्स एसी इनहिबिटर्स हैं, यानी कि वेजोडायलेटर्स, और उसका जो रोल है वो क्या नाम है उसका, वो आप उसको करेंगे कि हार्ट फेलियर को का जो जो प्रोग्नोस्टिक पैरामीटर्स हैं उसके जरिए आप देखेंगे कि उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ें हैं जो इम्प्रूव कर सकती हैं। तो ये मेनली कुछ शायद मैं कुछ मिस कर रहा हूँ या आई एम नॉट श्योर, आई थिंक यही सारी चीज़ें ब्रोंकोडायलेटर हैं, उसमें आपने है वो, बाकी ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट हैं, या वो तो पेशेंट ले ही रहा होगा ना। तो आपने उसके अंदर स्मोकिंग को क्विट किया, चेस्ट फिजियोथेरेपी की, इंसेंटिव स्पायरोमेट्री की, पोस्चरल ड्रेनेज की, प्लोरल टैप कर दिया अगर की ज़रूरत है, हार्ट फेलियर के ट्रीटमेंट को किया। तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द टाइम, अगर आप थोड़ा टाइम है तो आप सिंपल नेबुलाइजेशन भी करेंगे ना, तो भी कुछ ना कुछ फ़ायदा हो जाएगा। अगर आप उसकी इंसेंटिव स्पायरोमेट्री उसकी थोड़ी बहुत करवा लेंगे, उसी से पोस्ट ऑपरेटिव आउटकम इम्प्रूव कर जाएगा, ठीक है। अदरवाइज जो है, इस पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिव वेंटिलेशन की भी ज़रूरत पड़ सकती है, पोस्ट ऑपरेटिव जाहिर बात है आईसीयू की ज़रूरत होगी, पोस्ट ऑपरेटिव सी पैप बाई पैप की भी ज़रूरत हो सकती है, ठीक है। ये भी एक ऑप्टिमाइजेशन का ही एलिमेंट है। ये हो सकता है कि आपको प्री ऑपरेटिवली भी उसको शुरू कर दें बाई पैप। अक्सर औकात ऐसे जो पेशेंट्स होते हैं सीओपीडी, उनको इनिशियली प्री ऑप ही शुरू कर देते हैं बाई पैप, और ताकि उनका थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हो जाती है लंग फंक्शन में, और फिर पोस्ट ऑपरेटिव भी उसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो ये चंद चीज़ें हैं कि जो आपकी ऑप्टिमाइज, और ये क्वेश्चन मेरे से पूछा गया था वाइवे में, ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है, इसमें आपको ये जहन में रखना चाहिए। और जहां पर भी देखें, जो भी ऐसी कंडीशन जिसमें स्टीरॉयड का जिक्र आ जाए ना, तो वहां पे आपने स्टीरॉयड रिप्लेसमेंट के बारे में बात करनी है, तो ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अबाउट इंट्रा पोस्ट एनेस्थीसिया कॉम्प्लिकेशन ऑफ सीओपीडी पेशेंट, यस, वो तो आपने बताना ही है। तो स्टीरॉयड की रिप्लेसमेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए, प्लस जो ड्रग्स ले रहा है पेशेंट या जो चीजें हैं उसके साइड इफेक्ट्स। बाय द वे, एकदम से मेरे दिमाग में क्वेश्चंस आ रहे हैं, एंटीबायोटिक कौन सी होती है जो यूज की जाती है और उसका एनेस्थीसिया से कोई रेलिवेंट होता है? एक एंटीबायोटिक अक्सर औकात ये पेशेंट्स ले रहे होते हैं, चेस्ट इन्फेक्शन वाले सीओपीडी के पेशेंट, उसका एनेस्थीसिया से कोई रेलिवेंट बनती है? सोचें जरा, एक एंटीबायोटिक कौन सी होती है जिसका हमारे हमें हमको पता होना चाहिए? फ्लूरोक्विनोलोन का एनेस्थीसिया से कोई रेलिवेंट है? ठीक है, ये क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्गेशन होती है इससे, फ्लूरोक्विनोलोन से, लीवोफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ये अक्सर क्योंकि इस, अच्छा एक और एंटीबायोटिक के बारे में भी एक बात दिमाग में आ गई, तो मैं आपको बता दूं कि जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं ना, तो ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव कैवरेज से इनिशियली जो अपर एयरवे के लिए ग्राम पॉजिटिव, और चेस्ट इन्फेक्शन वगैरह के लिए ग्राम नेगेटिव, ठीक है। जो माउथ और जो ऐसे डर्टी एरिया होता है वहां पे एनारोब्स, एनारोब्स के लिए जो एंटीबायोटिक होती है ना, वो मेट्रोनिडाजोल होती है, ठीक है। और जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं तो ग्राम नेगेटिव कवरेज की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ये सिप्रोफ्लॉक्सासिन वगैरह होती है ना, फ्लूरोक्विनोलोन्स, ये इनके ग्राम नेगेटिव कवरेज ज़्यादा होता है, जबकि जो एमॉक्सिसिलिन है या फर्स्ट जनरेशन
सेकंड जनरेशन सुप्राफ्लॉक्सासिन है, उनका भी ग्राम पॉजिटिव ज्यादा होगा। तो जैसे जैसे नीचे जाते हैं ग्राम नेगेटिव होगा। जैसे जो जो क्या नाम है उसका, सेफ्स्पैन है, या आपकी जो रोसिफिन होती है, सेफ्ट्राक्सोन, वो थर्ड जनरेशन है, तो उसके अंदर नेगेटिव कवरेज ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये एक छोटी सी इसकी एंटीबायोटिक के बारे में। तो और एंटीबायोटिक की और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। क्रॉस रिएक्टिविटी होती है, जिन पेशेंट में पेनिसिलिन एलर्जी है उसमें सिप्रोफ्लॉक्सासिन, सॉरी, जो सेफलोस्पोरिन्स है वो भी आप अवॉइड करें तो बेहतर है, वेनकोमाइसिन यूज कर लें। तो ये कुछ बातें हैं जो एंटीबायोटिक से रिलेटेड है। ओके, इंडक्शन की बात कर ली। हाँ, रीजनल एनेस्थीसिया का क्या रोल होगा? रीजनल, क्योंकि एक जेन में रखे बात के, वैसे तो कहा जाएगा कि जी जीए दे रहे हैं तो ज्यादा प्रॉब्लम होगी। स्पाइनल में सीओपीडी का क्या ताल्लुक होगा? सेफ है स्पाइनल? लोअर स्पाइनल अगर सर्जरी पॉसिबल है तो सेफ है सर, हाई स्पाइनल में प्रॉब्लम होगा। व्हाट डू यू मीन बाय हाई स्पाइनल? सर जिसमें अगर रेस्पिरेटरी मतलब मसल इन्वॉल्व होंगे, हाई स्पाइनल मीन अबव T4 लेवल। अब नहीं 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 नहीं, ये देखें, एक जहन में रखें बात। अबव T4 तो बहुत आगे की बात है ना। अभी हमने बात की है कि जो साइंस ऑफ रिस्पिरेटरी, जी आतिफ बोलो। सर इसमें एक्सेसरी मसल्स जो है ना उनकी इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी, वो ब्लॉक हो जाएंगे, तो इट्स जी, नॉट रिकमेंडेड, प्रेफरेबल नहीं होगी। मतलब आपने लफ्ज यूज करना है कॉशियस। ठीक है, तो ये कॉशियस है क्योंकि अब आप बोल रहे हो ना T4 से ऊपर, तो T4 से ऊपर तो बहुत ऊपर की कहानी है। ये तो जो एब्डोमिनल मसल्स होते हैं वो तो और भी नीचे होते हैं, वो तो इवन T10 T9, ये सारे जो सेगमेंट है, ये तो सारे जो रिब्स के मसल्स हैं, ये तो आपके ऊपर वाले थ्रेसिक सेगमेंट से भी होते हैं ना। तो इवन दिस लेवल पे भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर एक पेशेंट है जिसको जो डिपेंडेंट है, वो स्पाइनल शुड बी गिवन विद कॉशन। ठीक है, इट्स नॉट अ बिल्कुल क्लियर कट आंसर कि आप उसको आंखें बंद करके आप उसको स्पाइनल दे दें। जो होता है ना ग्रेडेड एपिड्यूरल के, इसमें आप ग्रेजुअल डोज दे के आप उसके लेवल को मेंटेन करके आप कर रहे हैं, तो दैट मे बी वेल टॉलरेटेड एज कंपेयर टू अ सिंगल शॉट स्पाइनल। तो ये आप जहन में रखें बात के, इसमें आपने जब जवाब देना है ना, तो कोई भी चीज सेफ नहीं है 100%। आप उसको रीजनल एनेस्थीसिया दे रहे हैं, सुप्राक्लेविकुलर ब्लॉक। ठीक है, तो सुप्राक्लेविकुलर ब्लॉक से फ्रेनिक नर्व की इन्वॉल्वमेंट होगी, तो फ्रेनिक नर्व की वजह प्रॉब्लम वो डिपेंडेंट है उसमें। तो अगर आप फ्रेनिक नर्व उसकी एक साइड की हेमी डायफ्राम उसकी पैरालिसिस हो जाएगा, तो वो पेशेंट को सिवियर डिस्निया हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने एक दफ़ा, एक पेशेंट था, वो उसका था CRF का, उसको पेशेंट को मैंने सुप्राक्लेविकुलर ब्लॉक लगा दिया, वो मुसीबत पड़ गई उसको, शदीद उसको डिस्निया शुरू हो गया। तो इसलिए इस पेशेंट में कौन सा ब्लॉक ज़्यादा होगा? अगर अपर एयरवे की सर्जरी, अपर लिम्ब की सर्जरी है, तो सुप्राक्लेविकुलर से ज़्यादा बेहतर इंफ्राक्लेविकुलर होगा, और इंफ्राक्लेविकुलर से ज़्यादा बेहतर एक्सिलरी होगा अगर पॉसिबल हो। ठीक है, सुप्राक्लेविकुलर और एंटिस्कैलेनी विल नॉट बी सेफ। इंफ्राक्लेविकुलर के अंदर फ्रेनिक नर्व की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, वो बेहतर है, और एक्सिलरी बेहतर है। इंफ्राक्लेविकुलर में क्या प्रॉब्लम हो सकती है? क्योंकि हाइपर इन्फ्लेटेड लंग्स है ना, तो उसके न्यूमोथोरैक्स के ज़्यादा चांसेस होंगे। ठीक है, तो ये भी इंफ्राक्लेविकुलर के अंदर भी ये प्रॉब्लम है, लेकिन एक्सिलरी विल बी सेफ। ठीक है, स्पाइनल एपिड्यूरल की बात कर ली हम लोगों ने, और जो लोअर लिम्ब के ब्लॉक्स हैं वो तो आप दे सकते हैं, लोअर लिम्ब के ब्लॉक्स का कोई ऐसा मसला नहीं है। तो रीजनल एनेस्थीसिया के अंदर ये चीज़ को आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए। तो जैसे अगर आपने, अच्छा, एक यहाँ पे आपने लफ्ज बोला है हाई स्पाइनल, तो हाई स्पाइनल में और टोटल स्पाइनल में क्या फर्क होता है? जी, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन हाई स्पाइनल एंड टोटल स्पाइनल? तो हाई स्पाइनल में कार्डियो एक्सिलरेटरी फाइबर्स ब्लॉक होंगे, T1 टू अच्छा, T4। और जो टोटल स्पाइनल है उसमें तो फोरामन मैग्नम के थ्रू चला जाएगा, क्रेनियल नर्व्स ब्लॉक हो जाएंगी। क्रेनियल नर्व्स ब्लॉक होंगी, या जो फ्रेनिक नर्व। फ्रेनिक नर्व? ठीक है, मेडुलरी C3, जो C3 C4 C5 जो है ना, उसकी जब इन्वॉल्वमेंट हो गई ना, तो दैट इज टोटल स्पाइनल। तो अब आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? आप कैसे, मैं कहूंगा कि भाई ये पेशेंट को हाई स्पाइनल है, टोटल स्पाइनल नहीं है? सर हैंड ग्रिप से पेशेंट के
मतलब है उसको कहेंगे कि उंगलियां दबाए अपने हाथ से, तो अगर अपर लिम्ब इन्वॉल्व नहीं होगा तो यार वो ये हाई जो आप होगा बता रहे हैं ना, टोटल में। ये आप जो बता रहे हैं, क्योंकि देखो पेशेंट इन दोनों, ये दोनों पेशेंट एपनिक हो जाएंगे इनिशियली, ठीक है। हाई स्पाइनल के अंदर कार्डियो एक्सेलरेटिव फाइबर्स हो रहे हैं ना, कार्डिक फाइबर्स, तो कार्डिक फाइबर्स की वजह से क्या होगा, सिवियर हाइपोटेंशन होगी। सिवियर हाइपोटेंशन की वजह से जो हाइपोपरफिजन। रिस्पायरेटरी सेंटर है ना, उसकी हाइपोपरफ्यूजन होगी। तो रिस्पायरेटरी सेंटर की हाइपोपरफ्यूजन की वजह से पेशेंट एपनिक हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये एपनिक जो है ना, ये जैसे ही आप ब्लड प्रेशर को इम्प्रूव करेंगे ना, तो ये एपनिया ठीक हो जाएगा। लेकिन जो हाई स्पाइनल है ना, क्योंकि उसके अंदर फ्रेनिक नर्व की इन्वॉल्वमेंट होगी, तो उसके अंदर पेशेंट विल नॉट बी एबल टू मेंटेन द एयरवे, और आपको उसको इंटुबेट करके आपको वेंटिलेट करना पड़ेगा जब तक उसका फ्रेनिक नर्व की रिवर्सल नहीं होती। तो ये एक डिफरेंस होता है हाई स्पाइनल वर्सेस टोटल स्पाइनल। और एक जेन में रखें कि हाई स्पाइनल थ्योरेटिकली अगर आपने उसको लगाना था T10 तक के लेवल आपको चाहिए था, और आपने उसके लेवल को T4 तक भी पहुंचा दिया है, तो थ्योरेटिकली उसको भी आप हाई स्पाइनल कहेंगे। समझ आई? उससे ज्यादा सिवियर रिलेटिवली मोर हाइपोटेंशन होगी। लेकिन जो रियल सेंस में हाई स्पाइनल इज अबव, यानी कि आप समझ लीजिए कि जो अबव थोरेसिक सेगमेंट्स आपके इन्वॉल्व हो गए ना जिसके अंदर, वो आपका हाई स्पाइनल है, ठीक है। तो मैंने अपने कैरियर में एक दफा हाई स्पाइनल को फेस किया हुआ है। पेशेंट को, सिजेरियन की पेशेंट को स्पाइनल लगाया, लगा के उसको लिटाया, टिपिकल पाकिस्तान का गवर्नमेंट हॉस्पिटल, मॉनिटर अटैच नहीं है, जब उसको देखा तो रिस्पॉन्ड नहीं कर रही। तो ऐसे मौका, अगर यही आपसे सवाल मैं पूछ रहा हूँ, ये आपसे क्रिटिकल इंसिडेंट्स के अंदर ये सवाल पूछा जा सकता है कि आपने स्पाइनल लगाया प्रेग्नेंट पेशेंट को, और उसके बाद वो पेशेंट अनकॉन्शियस हो गई है, व्हाट शुड बी योर इमीडिएट रिस्पॉन्स? क्या करना चाहिए? ACLS तो आपने बोल दिया, फौरन उसको इंटीबेट कर दिया आपने, ABC अप्रोच हो गई, कुछ और कोई चीज करनी होगी फौरी तौर पे? हेड अप करेंगे हेड अप करेंगे, हेड अप से क्या होगा? सर, ड्रग मजीद उसका मतलब इफेक्ट को मजीद वो रोकने तो के जो लिए चांद चढ़ना था शाहिद, वो तो चढ़ चुका है ना। आप क्वेश्चन को पिक करो, जरा सोचो एट्रोपिन जरा। देंगे, एट्रोपिन देंगे, एट्रोपिन देंगे। एट्रोपिन से क्या होगा? सर अगर वो ब्रेडिकार्डिया उसका डेवलप हो रहा है तो रेस्ट में जाने से बचाने के लिए। ओके, ये अल्बार का आंसर फिर भी बेहतर है। जो लेफ्ट लेटरल टिल्ट और डिलीवरी। वेरी गुड, ये जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है ना, वो आप इमीडिएटली बेबी को डिलीवर करवाएंगे, ठीक है। तो जब मेरे साथ हुआ था, तो मुझे किसी ने सिखाया हुआ था, वो पता नहीं अल्लाह ने उस वक्त फौरी तौर पे, कि उधर से मैंने उसको इंटुबेट किया है, उधर से मैंने एपिनेफ्रीन दी है, उधर से मैंने आवाज दी है सिजेरियन ओपन करे एब्डोमेन, और विद इन फ्यू सेकंड वो मुझे उस दिन मुझे पता लग गया क्लियरली कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन हाई स्पाइनल एंड टोटल स्पाइनल, क्योंकि विद इन सेकेंड्स पेशेंट ब्रीथ कर रही थी, ठीक है, आ गई थी, और मैंने थोड़ी देर के बाद उसको एक्सट्यूबेट कर दिया था। मुझे पता था कुछ भी नहीं हुआ, वो पेशेंट बिल्कुल, शी वाज एब्सोल्युटली फाइन पोस्ट ऑपरेटिव। तो बताने का मकसद ये है कि एनेस्थीसिया इज ऑल अबाउट रिफ्लेक्सेस, ठीक है। इसकी अब आप, ये मैंने आपको टोटल प्रैक्टिकल बात बताई है, लेकिन जाहिर बात है थ्योरेटिकल चीज़ें डिफरेंट हो जाएंगी, लेकिन ये मैंने आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल बात बताई है कि आपको अगर देखना चाहते हैं ना, तो आप उसको थोड़ी देर, जैसे ही आप उसको, उसकी हाइपोटेंशन जैसे ही इंप्रूव करेगी ना, तो वो पेशेंट की ब्रीदिंग भी वापस आ जाएगी। तो उस दिन मुझे पता चल गया था कि ये हाई स्पाइनल हुआ था, टोटल स्पाइनल नहीं हुआ था, ठीक है। या ये कह लें कि वो हो सकता है रियल सेंस में वो हाई स्पाइनल भी मैं इसको नहीं कहूंगा, उसको मैं ये क्योंकि ECG अटैच नहीं थी ना, तो इसलिए मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, उसका अरेस्ट हुआ या नहीं हुआ, आई हैव नो आइडिया, क्योंकि हम लोगों ने उसका कंप्रेशन नहीं किया था। मैंने सिर्फ उसको एपिनेफ्रीन दी, इंटुबेट किया और बेबी आउट करवाया, और उस जमाने में ये इतनी तो सेंस होती नहीं थी। तो अब मैं बैठ के सोचता हूँ कि याद रखें बात की, एक एडवाइस है आपको, नेवर गिव स्पाइनल विदाउट ECG, याद रखें बात अब। क्योंकि वजह क्या होती है, एक और कौन सी चीज होती है जो स्पाइनल लगाते हुए प्रॉब्लम होती है? वेजोवेगल, ठीक है। वेजोवेगल अगर होगा, तो अगर आपने ECG या आपने पल्स ऑक्सीमीटर नहीं अटैच किया हुआ ना, तो आपको पता ही नहीं चलेगा। वो 75 लोग तो खड़े होके उसको सीने को दबा के, उसको गर्दन को दबा के रखा होता है, तो कई दफा पेशेंट को, आपको पता ही नहीं चलेगा कि उसको वेजोवेगल हो गया,
तो इसलिए इट्स वेरी डेंजरस। याद रखें बात, मैंने खुद एक दफा बच्चे को, एक लड़के को, यंग लड़के को, कोई 20-22 साल के लड़के को स्पाइनल लगा रहे थे, और मैंने पीछे मॉनिटर की तरफ, मेरा मुंह नहीं था, मुझे आवाज से पता लग गया, मैंने उसको एट्रोपिन दिया था और वो फौरन उसको लिटा दिया था। तो मतलब ये इट्स सो इम्पोर्टेंट। कम अज कम मैंने अपने कैरियर में 2 दफा वेजोवेगल को पिक किया है, जस्ट बिकॉज वी हैड अटैच्ड ईसीजी एंड पल्स ऑक्सीमीटर। तो नेवर गिव स्पाइनल, क्योंकि होता क्या है कि जो एनेस्थीसिया के टेक्नीशियंस होते हैं ना, उनको बड़ी प्रॉब्लम होती है ना, क्योंकि वो उनको मशीन को आगे करना पड़ेगा या उसको करना पड़ेगा। तो आप स्पाइनल स्पाइनल लगाते हुए आप पेशेंट को ऑक्सीजन भी अटैच करें, आप उसको ईसीजी भी अटैच करें, उसको पल्स ऑक्सीमीटर भी अटैच करें, ठीक है, और फिर उसको स्पाइनल लगाएं। ये बेसिक मॉनिटरिंग के बगैर कभी भी स्पाइनल नहीं लगाना चाहिए। ये एक बेसिक चीज है, ठीक है। प्री एनेस्थीसिया ईसीजी मस्ट करवाएं बिफोर स्पाइनल, नो, नॉट नेसेसरीली। ईसीजी आप 12 लीड ईसीजी की बात करें नादर, 12 लीड ईसीजी इज नॉट मैंडेटरी, ठीक है। अच्छा, अब एक दो इम्पोर्टेंट बातें रह गई हैं, वो हम कर लेते हैं और फिर हम खत्म करते हैं। मुझे ये बताइए कि वेंटिलेटरी सेटिंग्स कैसे होती हैं? सर लो रेस्पिरेटरी रेट रखेंगे हम इसमें, और टाइडल वॉल्यूम भी कम रखेंगे, और प्रोलॉन्ग एक्सपिरेटरी रेट रखेंगे। ये एक सेकंड, ये किसकी माइक में से इतना ज्यादा शोर हो रहा है? ओके, रेस्पिरेटरी रेट, लो रेस्पिरेटरी रेट, लो टाइडल वॉल्यूम सर। लो टाइडल वॉल्यूम से ज्यादा प्रोलॉन्ग इंपॉर्टेंट बात कुछ और नहीं है? प्रोलॉन्ग एक्सपिरेटरी टाइम। आई रेशियो जो है 1:3 कर देंगे या 1:4 कर देंगे, ठीक है। और परमिसिव हाइपरकैप्निया करेंगे। परमिसिव लाउड हाइपरकैप्निया, परमिसिव अपनिया कैप्निया, और एक और इसके अलावा पीप। सर ये पीप मतलब कंट्रोवर्शियल है कि देंगे? यार ये मैंने सुबह मैं ऑडियो मैसेज भी मैंने इसीलिए रिकॉर्ड करके भेजा था। वो असल में जो इसकी ना, ये भी मैंने एक वीडियो भी मैंने शेयर की है, ठीक है। वो एक किसी लेक्चर में सुन रहा था कि जस्ट इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, होता ये है कि जब ऑटो पीप जनरेट होती है ना, तो एक्चुअली पेशेंट को जो है वो एक्सपायर करने के लिए ना, या इवन इंस्पिरेटरी उसको पेशेंट को वेंटिलेट करने के लिए ना, ज़्यादा प्रेशर्स की ज़रूरत होती है। तो जब आप पीप देते हैं ना, तो वो उस चीज़ को ये नलिफाई करता है। जो आप एक्सट्रिंसिक बाहर से पीप देते हैं, तो ऑटो पीप को ट्रीट करता है। और एक और प्रैक्टिकली एक और भी चीज़ होती है कि आप एवरी नाउ एंड देन आप सर्किट को डिस्कनेक्ट करें। जब आप सर्किट को डिस्कनेक्ट करेंगे ना, तो ऑटो पीप जो है वो थोड़ी बहुत नलीफाई, ये मैं आपको प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। आई एम नॉट श्योर कि ये थ्योरेटिकली इसकी किस हद तक है। अगर आप उसको सर्किट को डिस्कनेक्ट करके आप उसको वो करेंगे ना फॉर फ्यू सेकंड्स, तो हो सकता है ये जो ऑटो पीप जनरेट हो रही है ये कम हो जाए, ठीक है ना। लेकिन बेसिकली ये शायद आई एम नॉट श्योर कि ये टेक्निकल आंसर है या नहीं। ये यू कैन जस्ट रिकन्फर्म अबाउट इट। लेकिन जो एक्सट्रिंसिक पीप है ना, इट्स अ ट्रीटमेंट ऑफ ऑटो पीप, ठीक है। इट्स अ ट्रीटमेंट ऑफ ऑटो पीप। आपने एक्सट्रिंसिक पीप जब देंगे, तो वो ऑटो पीप को उसको काउंटरैक्ट करेगी, ठीक है। बाकी ये देखें, अगर आपने लो रेस्पिरेटरी रेट भी कर दिया, लो टाइडल वॉल्यूम भी कर दिया, तो आपका CO2 बढ़नी शुरू हो जाएगी, ठीक है। दैट्स व्हाई यू सेड दिस वन। दूसरे आपने आपने प्रेशर कंट्रोल वेंटिलेशन वर्सेस वॉल्यूम कंट्रोल वेंटिलेशन, विच इज बेटर? प्रेशर कंट्रोल। प्रेशर कंट्रोल वेंटिलेशन, ठीक है। वो कल मैंने आपको वो जो मोड बताए थे ना, वो PRVC इज इवन बेटर, ठीक है। आप PRVC करें, प्रेशर रेगुलेटेड वॉल्यूम कंट्रोल, या इसको और ये वो क्या नाम है उसको, ये क्या नाम है उसका, प्रेशर कंट्रोल वॉल्यूम गारंटीड भी कहते हैं, प्रेशर कंट्रोल वॉल्यूम गारंटीड, इस तरह का भी इसका भी नाम होता है। तो ठीक है। और ये मेरे ख्याल ये डॉक्टर साजिद का माइक बहुत ज्यादा शोर कर रहा है। एनीवेज, अच्छा, हमने देखो, मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपको जो जो बातें बता सकूं, जो जो मेरी बात के मुताबिक है, वो मैंने आपको बताई है।
और अगर आप देखें, अब हम लोगों ने थोड़ा सा ये बेतरतीब तरीके से किया है, लेकिन मैं आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाह रहा था। अगर अब हम इसको समराइज करें ना, तो इस पेशेंट को आप हिस्ट्री, एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से आप क्वांटिफाई करेंगे कि इसको माइल्ड डिजीज है, इन मॉडरेट डिजीज है, सिवियर डिजीज है, कितना इसमें रिवर्सिबिलिटी का एलिमेंट है, कितना इसमें कार्डिक फंक्शन इन्वॉल्व हो रहा है, सर्जरी की अर्जेंसी देखेंगे कि सर्जरी की कितनी अर्जेंसी है, कितना टाइम है आपके पास ऑप्टिमाइजेशन का। अगर आप पल्मोनोलॉजी को रेफर करके आप उसको ऑप्टिमाइज जिस तरह कर सकते हैं, जैसा कि हमने डिस्कस किया, ठीक है। और अल्टीमेटली जो जो चीज़ें हैं हम कर सकते हैं वो उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। जो इम्पोर्टेंट अल्टीमेटली जो है वो वी क्यू मिसमैच होगा। जब वी क्यू मिसमैच होगा तो आपके जो ब्लड गैसेज हैं, पी फॉर बट नॉट फॉर एस्थमा टू प्रिवेंट न्यूमोथोरिक्स। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस क्वेश्चन। ठीक है। और उसके बाद जो है आपकी इंट्रा ऑपरेटिव जी जो चीज़ें हमने बात की, हमने उसको जो है ना वो इंडक्शन के बारे में बात की हमने। डीप प्लेन ऑफ एनेस्थीसिया में आप एयरवे की मैनिपुलेशन करेंगे, मल्टी मोडल एनाल्जेसिया देंगे, आप उसको मैग्नीशियम यूज़ कर सकते हैं, लाइडोकेन यूज़ कर सकते हैं, लो डोज कैटामीन देंगे। एनसेट्स का रोल कंट्रोवर्शियल है, वो आप उसको अवॉइड करेंगे अगर उसमें एस्थमा का एलिमेंट है। और अच्छा, एक क्वेश्चन है यहाँ पर, एक और आ गया है ये, यहाँ पे कहीं पे ना फॉर्मूला भी है, ये आपको पता होना चाहिए कि अगर एक पैक डेली ले रहा है ना, तो वो 1 पैक ईयर होगा। एम आई राइट? ये पैक ईयर कैलकुलेट करने आते हैं आपको? नहीं। ये मैं आपको ना अभी, ये अभी आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे है स्मोकिंग वाले में ना, है, रुक जाइए, ये चीज को मैं, एक मिनट प्लीज। स्मोकिंग, देर इज अ ब्यूटिफुल वर्ल्ड आउटसाइड ऑफ मनहूस मॉर्गन शरीफ। एम आई राइट? ये मैं आपको ना शेयर कर दूंगा, ये मुझे इस वक्त फिर हमारा टाइम ज़ाया होगा। ये पैक ईयर्स आपको कैलकुलेट करने आने चाहिए, ठीक है। ये पैक ईयर्स आपको कैलकुलेट करने आने चाहिए, मैं आपको शेयर कर दूंगा ग्रुप में ना। एक मिनट, मैं इसको देख रहा हूँ कि कोई चीज़ रह तो नहीं गई है। अ, बाकी जो है ना वो एक चार्ट बना हुआ होगा पिंक पफ, क्योंकि एग्जाम में वो आपसे पूछेंगे पिंक पफर वर्सेस ब्लू ब्लॉटर्स, तो वो आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए, ठीक है। जितना मुझे समझ आया वो मैंने आपको बता दिया है। नॉर्मली जो है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस जो होता है ना, उसमें कफ का एलिमेंट ज्यादा होता है, उसमें साइनोसिस ज्यादा होता है, ठीक है। इट इज रिलेटेड टू, मोर रिलेटेड टू स्मोकिंग। जो एम्फाइसीमा है उसके अंदर जो अल्फा एंटीट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी वाला एलिमेंट ज्यादा होता है। जो बाकी जो चीज़ें हैं मोर और लेस सेम होती हैं। मैंने आपको बताया कि ये एक पेशेंट में 100% एब्सोल्युटली नहीं होता, जो कि उसमें ज़रूर ही एक ही एलिमेंट हो, उसमें कंबाइन सा मिक्स सा एलिमेंट होता है, ठीक है। और उसके बाद हिस्ट्री एग्जामिनेशन की हमने बात कर ली, फंक्शनल कैपेसिटी की बात कर ली, एग्जैसर्बेशन, हॉस्पिटल एडमिशंस, प्रीवियस रिक्वायरमेंट, ठीक है, स्मोकिंग हिस्ट्री, कफ, स्पूटम, उसके बाद कोमॉर्बिडिटीज हो गई। मैं जस्ट एक आपको इसको एक गो थ्रू हम जल्दी से कर रहे हैं कि कोई मिस तो नहीं कर रहा। अच्छा, अगर एक पेशेंट एस्थमेटिक भी, सॉरी सीओपीडियर भी है और साथ ओवरवेट भी है, तो और आमतौर पे ये पेशेंट्स होते हैं बिकॉज ऑफ स्टीरॉइड्स, तो ये एक एडिशनल रिस्क होगा, ठीक है। अ, उसके बाद ये मैंने आपको बताया था कि ये इस तरीके से उसको क्वांटिफाई करते हैं, माइल्ड मॉडरेट सीवियर 50 to 70, और 30 to 50 लेस देन 30। अच्छा, उसके बाद स्मोकिंग सेसेशन, ड्रग ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट इन्फेक्शन, फिजियोथेरेपी, ये सारी मैंने आपको बातें बता दी हैं। हाँ, एक क्वेश्चन और है, इंट्रा ऑपरेटिवली ब्रोंकोस्पैज्म, एयर हाई एयरवे प्रेशर्स हो गए, इसकी क्या ड्रिल होती है? ये सिर्फ नॉट ओनली रिलेटेड टू एस्थमा सीओपीडी, व्हाट इज द ड्रिल फॉर इंट्रा ऑपरेटिव? यस, ये किसने किया है शेयर? वेरी गुड। ये हाँ, इसको कर लेते हैं कि अगर 1 सिगरेट पीता है डेली, वन 1 पैक डेली पीता है, तो वो 1 पैक ईयर होगा ना। इफ अ पर्सन स्मोक 1 सिगरेट, वन नॉट 1 सिगरेट, 1 पैक, ठीक है, 1 पैक पर डे फॉर 10 years, तो ये 10 पैक ईयर्स हो गए।
अगर वो 2 पैक पिएगा ना डेली तो वो 20 पैक ईयर्स हो जाएंगे। समझ आई? ये इस तरीके से है कि अगर 1 पैक ले रहा है पर डे फॉर 10 ईयर्स तो वो 10 पैक ईयर्स है, और अगर वो 10 सिगरेट्स ले रहा है तो वो हाफ हो जाएगा। ठीक है, ये होता है, यही था, मुझे याद भूल गया था इसमें। अच्छा हाँ, इंट्रा ऑपरेटिवली ब्रोंकोस्पैज्म या हाई एयरवे प्रेशर्स की क्या ड्रिल होगी, क्या करेंगे फौरन? जी, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, टॉक्स में भी पूछा जा सकता है, एंड दिस कैन बी आस्क्ड इन I hope Mr. Khalid Al Khayat some other nationality. Anyways, because we were discussing in Urdu, Dr. Khalid, are you from some other nationality other than Pakistani? Because if you are here, we can just discuss in English. Anyways, so Shahid, what would you like to do? High airway pressures. सर डिस्कनेक्ट करेंगे क्योंकि इसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है किसी भी लेवल पे, सर्किट लेवल पे या एंडोट्रेकियल ट्यूब के लेवल पे। Okay, I think you are missing a trick. For any complication, please do listen. I have discussed this how to tackle critical incidents. Okay, so for any critical incidents, our approach is airway, breathing, circulation. Call for help. Okay, you will make 100% oxygen. When you will convert it on the bag mass, so you will be able to pick out the compliance. Maybe there is light plane of anesthesia, patient may be breathing. You need to give muscle relaxant. You need to increase the depth of anesthesia. You will auscultate bilaterally. Okay. Maybe the tube is endobronchial. So this is the reason for high airway pressures. Then at the same time, you will have breathing, circulation. Maybe you have to rule out the serious complications at that time, which may be pulmonary embolism, okay, pneumothorax. So in that case, there will be some hemodynamic changes. If there is high airway pressures with hypotension or end-tidal CO2 has gone, so it may be a sign of pulmonary embolism. Okay, so you have to rule out something serious. So your approach will be according to the situation. If muscle relaxant is needed, you will give muscle relaxant. If this depth of anesthesia is a problem, you will increase the depth of anesthesia. If endobronchial, you will pull out the tube. And then at the same time, maybe you need to do some suction through the tube. Okay, there may be mucus plug, so you might need to do the suction through the tube. And you will then next step, you can itself, as we know that inhalational agents themselves are a source of जो है ना वो आपकी चले गए वो भाई। एनीवेज, तो वो जो है ना आपका जो इनहेलेशनल एजेंट्स है ना, वो आपकी इटसेल्फ ब्रोंकोडायलेटर हैं। लेकिन अगर आपने उसमें उस वक्त नेबुलाइज करना मुश्किल होगा ना, तो आप उसके सर्किट के साथ आप कनेक्ट करके जो है ना पफ, वो आप देंगे। ठीक है, वो बहुत 100% नहीं जाएगा, लेकिन एक्चुअली आप वो कर सकते हैं। उसके बाद और कोई चीज़ें हैं जो आपके दिमाग में आ रही हैं, और क्या कुछ कर सकते हैं इस टाइम पर? एपिनेफ्रीन दी जा सकती है? जी यस सर, एनाफिलैक्सिस से भी हो सकता है ना। जी, मतलब आपने उस टाइम पर देखना है कि कोई ड्रग तो नहीं दी जा रही है। हाँ, ये देखो ना, ये एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, रिकन्फर्म बैग में किया है, कैप्नोग्राफी आपने देख लिया है, ब्रीदिंग आपने देख लिया है, उसके बाद जो है आपकी हार्ट रेट, परफ्यूम, ब्लड प्रेशर आपने देखा है, डेप्थ ऑफ एनेस्थीसिया देख लिया है। यही चीज़ें मैंने आपको बताई है ना, तकरीबन मोर और लेस यही बातें। आपने एनाफाइलैक्सिस में आपका रैश ज़रूरी नहीं है, बाय द वे। हाई एयरवे प्रेशर विद हीमोडायनेमिक कोलैप्स मे बी अ साइन ऑफ एनाफाइलैक्सिस। ठीक है, तो आपने देखा है कि उस टाइम पर कोई दवाई तो नहीं दे रहे, कोई एंटीबायोटिक तो नहीं दे रहे, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है कि जिसकी वजह से among the anesthesia medication which has the highest rate of incidence of anaphylaxis. मसल रिलैक्सेंट्स। ट्रेकियम एट्राक्वेरियम। No, you are wrong. Highest सक्सिनाइल कोलिन। no, rocuronium.
rocuronium and succinylcholine. Atracurium is associated with histamine release, but it is not related to anaphylaxis. ठीक है, एट्राक्यूरियम से उतना इंसिडेंस नहीं है जितना रॉकरोनियम से या सक्सामिथोनियम से। ठीक है, ये आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। ये एनाफिलैक्सिस का वो है, नैप रिपोर्ट में आप पढ़ लें, आपको पता चलेगा। और नंबर 2 पे एंटीबायोटिक्स है। एंटीबायोटिक्स ब्लड, वैसे तो एनाफिलैक्सिस किसी भी चीज़ से हो सकता है, और एक और किस चीज़ से होता है, सोचे ज़रा, ड्रग्स के अलावा। लेटेक्स है, लेटेक्स। वेरी गुड, लेटेक्स से। ठीक है, तो ये आपको देखे ना, अब हम का एक आउटवर्ड हम लोगों की हो गई है थोड़ी सी डिस्कशन। एम्बुलस हो गया, एस्पिरेशन हो गया, पल्मोनरी एडीमा, ब्रोंकियल इंट्यूबेशन। ओके, सो वी हैव जस्ट डिस्कस सम ऑफ द एस्पेक्ट्स। अच्छा, पोस्ट ऑपरेटिवली भी यही सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। एचडीयू में होगा, कॉर पल्मोनरी है। मेरे ख्याल हम लोगों ने तकरीबन सारी बातें कर ली। थ्रोम्बोप्रोफिलैक्सिस मैंने आपको बताया ना, इस पेशेंट में ज़्यादा रिस्क होगा फॉर एम्बोलिज्म। ठीक है, ये आर्टिकल्स हैं, ये आप देख सकते हैं, ये इनकी ना गाइडलाइंस हैं एस्थमा की, ये भी आप देख सकते हैं। ये मैंने कुछ आर्टिकल्स यहाँ पे और रखे हुए हैं, आप लोग इसमें देख सकते हैं। तो इसमें जो चीज़ रह गई है ना, वो है वो आपका जो फ्लो वॉल्यूम लूप्स हैं, वो मुझे थोड़ा सा उसको रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि बेसिक साइंसेस की जो चीज़ें होती हैं ना, वो भूल जाती हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। मेरा ख्याल है कि अभी हम अगर अभी, क्योंकि अब काफ़ी टाइम हो गया, आप लोग भी एग्जॉस्ट हो गए होंगे। आई होप कि आपको मैंने कुछ ना कुछ समझा दिया है ये टॉपिक। ये मैंने कई दफ़ा डिस्कस पहले भी किया हुआ है, तो आप पिछली डिस्कशंस भी देख सकते हैं, क्योंकि कई दफ़ा आपकी एनर्जी लेवल बेहतर हो तो आप ज़्यादा बेहतर तौर पे करते हैं। मैंने एक मिनट रुकिए, ये किताब आप लोगों ने देखी है? नहीं जी देखिए। वही मैं असल में मैं सास और फुफ्फो की तरह मैं ये देता रहता हूँ। ये आप लोग मनहूस मॉर्गन की दुनिया से बाहर तो निकले ना, फिर आपको पता चलेगा कि कितनी प्यारी दुनिया है। ठीक है ना, इस किताब के अंदर ना ग्राफ्स और चार्ट्स, बहुत ही ये अच्छी किताब है। और इसका नाम है फिजिक्स, फिजियोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी फॉर एनेस्थेटिस्ट। इसमें ना, इसमें इन्होंने इवन ग्राफ्स एक्सप्लेन किए हुए। कौन सा सिस्टम आ गया? इसमें डाउनलोड नहीं हुई है ना, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम। वेस्कुलर से पहले इंस्पिरेशन, इसमें बहुत प्यारे ग्राफ, यानी कि अगर आपने कोई भी, हाँ ये है, ये भी यहाँ पे आ जाएगा। इसमें जहां पर भी केपीए आ रहा है ना, तो वो केपीए को आपने कन्वर्ट करना हो तो वो 7.5 से आप मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये आपको इसमें से एक, ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व तो है ही है। एक मैं आपसे एक दफ़ा पूछा था ऑक्सीजन कैस्केड, तो ऑक्सीजन कैस्केड भी इसमें बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है। आई विल जस्ट ट्राई टू, असल में जो ग्राफ्स है ना, वो मेरा बहुत ही वीक पॉइंट है। किसी ज़माने में जब ईडीए का एग्ज़ाम दिया था, तो उस वक्त जो है ये रट्टे मारे थे, और अल्लाह ने इम्तहान पास करा दिया था। हमारे जो एग्जामिनर्स हैं ना, वो हमारे सिस्टम के अंदर ये हैं ग्राफ्स। ठीक है, इन्होंने इसमें इसमें ना एक्सप्लेन भी किया हुआ है। लेट्स सी। अच्छा, ये मुझे सोचने दें, क्योंकि हर दफ़ा भूल जाता है। मेरा एक बहुत अच्छा मेरा दोस्त है जो कि ग्राफ्स का एक्सपर्ट होता था, तो हम लोग उसी से, ये देखें, ये जो एरिया दिखा रहे हैं ना, ये रेजिडुअल वॉल्यूम है। अब जब पेशेंट इंस्पायर करना शुरू करता है ना, तो ये नेगेटिव फ्लो होता है ना, हम इंस्पायर करते हैं तो अब गैस अंदर जाती है, तो ये देखें, ये यूं वाला, ये यहाँ से इंस्पिरेशन, ये ग्राफ आ रहा है, और ये यहाँ पर ज़ीरो लेवल पे आ गया। फिर एक्सपिरेशन शुरू होती है, फ्लो ज़्यादा होता है, फिर ग्रेजुअली कम होता है, और रेजिडुअल वॉल्यूम तक आके ये क्योंकि रेजिडुअल वॉल्यूम तो नहीं निकाल सकते ना, अगर आप फुल आप ले रहे हैं ना, यानी कि पूरे एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम तक का आप निकाल रहे हैं, तो वो रेजिडुअल वॉल्यूम का पोर्शन आप तक तो नहीं जा सकता ना। तो ये यहाँ से, ये तो हो गया नॉर्मल ग्राफ।
अच्छा, अब आ जाएं जिस पेशेंट में ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज है, ठीक है, तो इंस्पिरेशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना, एम आई राइट? इंस्पिरेशन में प्रॉब्लम नहीं है ना? जी सर। नहीं, जब यहाँ से एक्सपिरेशन शुरू हुई है ना, तो देखें इनिशियली फ्लो बढ़ा, उसके बाद जो अब आप इस ग्राफ को से कंपैरिजन करें ना, तो जो ये वाला पोर्शन है ना एक्सपिरेशन वाला, ठीक है, उसके अंदर प्रॉब्लम आ रही है, पेशेंट को वो लेवल्स अचीव नहीं हो रहे और देर से वो आ रहा है उस लेवल पे, ये देख रहे हैं। इसको अब आप कंपैरिजन करें इससे, कि यहाँ इसके अंदर फ्लो रेट ज़्यादा है और ये यू करके ग्राफ आ रहा है, ठीक है, जबकि जो आपका ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज है उसके अंदर ये बहुत स्लांटिंग सा इसका आ रहा है, इसका फ्लो ज़्यादा नहीं है, इनिशियली कम हो गया है और ये इस तरह आ रहा है, ठीक है। अच्छा, जो रिस्ट्रिक्टिव डिजीज़ है, तो रिस्ट्रिक्टिव डिजीज़ में प्रॉब्लम क्या हो रही है कि लंग का वॉल्यूम ही श्रिंक हो गया है, समझ आई? तो वो टोटल लंग कैपेसिटी देखें यहाँ के बजाय इधर आ गई, वॉल्यूम कम हो गया ना, इस तरफ फ्लो है, इस तरफ वॉल्यूम है। तो ये देखें, ये रिस्ट्रिक्टिव लंग का है कि ये इवन इसके अंदर जो है ना, आपने एक और चीज़, एक और चीज़ मैं मेंशन करना भूल गया हूँ कि देखें यहाँ पर रेजिडुअल वॉल्यूम जो है वो इतना है, ठीक है, यहाँ पर देखें रेजिडुअल वॉल्यूम इधर चला गया है, यानी कि रेजिडुअल वॉल्यूम बढ़ गया है, एम आई राइट? ठीक है, यस सर। जबकि यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर इन्होंने क्या किया हुआ है कि जो टोटल लंग कैपेसिटी बढ़ गई है, सॉरी टोटल लंग कैपेसिटी कम हो गई है, ठीक है, रिस्ट्रिक्टिव डिजीज के अंदर, और पूरे का पूरा ओवर इंस्पिरेटरी की भी प्रॉब्लम आ रही है, इंस्पिरेटरी फ्लोज भी कम हो गए हैं और एक्सपिरेटरी फ्लोज भी कम हो गए, लेकिन एक्सपिरेटरी फ्लोज पे कम है इफेक्ट, इंस्पिरेटरी पे ज्यादा है, तो इसलिए इसमें आपका ग्राफ छोटा हो गया, ये रिस्ट्रिक्टिव का पैटर्न है। उसके बाद आपकी ये वाला जो है, जो क्या नाम है उसका, वेरिएबल इंट्राथोरेसिक ऑब्स्ट्रक्शन, जो इंट्राथोरेसिक ऑब्स्ट्रक्शन होती है उसमें एक्सपिरेशन में प्रॉब्लम आती है, ठीक है, और जो एक्स्ट्रा थोरेसिक प्रॉब्लम होती है उसमें इंस्पिरेटरी में प्रॉब्लम आती है। अब इसकी एग्जांपल क्या है, इसकी एग्जांपल कोई बताए अगर किसी को आता है, क्योंकि ये मेरा बहुत वीक है, कि मैं आपको जिस हद तक मुझे, मनहूस मॉर्गन, यस इट इज मनहूस मॉर्गन, जो ये साफ बात है भाई, मैंने बहुत कम चीजें रट्टे मारी हैं, उनमें से ये एक चीज है, ये उसका ग्राफों को रट्टे मार लिए थे कि अगर इंस्पिरेटरी की प्रॉब्लम है तो वो एक्सप्रेशन में आएगी, वेरिएबल इंट्राथोरेसिक के अंदर एक्सप्रेशन में प्रॉब्लम होगी, वेरिएबल एक्स्ट्राथोरेसिक में इंस्पिरेशन की प्रॉब्लम होगी। ये आपको इसकी थोड़ी सी जो है ना, इसकी कॉजेज को आप देख लें, ये मुझे नहीं आता, आई एम रियली सॉरी, ये मुझे इसको प्रिपेयर करना पड़ेगा, फिक्स के अंदर ये इस तरह का है, लेकिन ये आप इसको ग्राफ्स को यहाँ पे समझ सकते हैं। आई होप कि मैंने आपको थोड़ा बहुत कोई ये एक आइडिया दिया है कि इसके अंदर क्या नज़र आ रहा है, इसके अंदर क्या नज़र आ रहा है, ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि बैटरी डाउन हो गई है। अच्छा, एक चीज़ और ये कि ना इसके अंदर आपको एस्थमा सीओपीडी के जो क्वेश्चंस है वो एक दफ़ा हम देख के बस हम ख़त्म करते हैं। ये देखिए, ये इसी फोल्डर में ना टॉपिक वाइज क्वेश्चंस हैं, तो टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को आप ज़रूर देखा करें, आपको वाइवे में इसकी बहुत उसको आपको फ़ायदा मिलेगा। यहाँ पे मैंने, हम लोगों ने ये कुछ में से चीज़ें डिस्कस की हैं, डिफाइन एस्थमा, टाइप्स ऑफ एस्थमा, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक वेज़ोमोटर, क्लासिफाई एस्थमा, पैथोफिजियोलॉजी, इसमें पैथोफिजियोलॉजी हमने जो है इसमें एलर्जिक है। अच्छा, उसके बाद रिस्क फैक्टर्स, एलर्जी की हिस्ट्री, कोई जो रिस्क फैक्टर्स जो होते हैं, फैमिली हिस्ट्री है, और कोई पोलन्स वगैरह हैं। जो एस्थमा की जो है वो एक्यूट सीवियर एस्थमा, लाइफ थ्रेटनिंग एस्थमा, वो आपको जो हम डिस्कस कर रहे थे ना, कि पेशेंट में जो लाइफ थ्रेटनिंग एस्थमा या नियर फेटल एस्थमा होगा ना, उसके अंदर पेशेंट की चेस्ट साइलेंट होगी, ठीक है, और पेशेंट में भी ऑप्टेंडेड, कॉन्शियस लेवल हो सकता है उसका खत्म हो जाए, जबकि जो एक्यूट सीवियर उसमें होगा ना, उसके अंदर वो वाली चीज होगी कि पेशेंट विल नॉट बी एबल टू फिनिश सेंटेंस इन वन ब्रेथ, ठीक है, तो ये बाकी उसको क्वांटिफाई करेंगे पीक एक्सपिरेटरी फ्लो रेट से। बाकी आप उसको, आपको मैंने बताया कि एक एक चीज का अलग अलग बता दें, ईसीजी के अंदर क्या चीज आ रही होगी, एबीजीज में क्या चीज आ रही होगी, क्लिनिकली क्या चीज आ रही होगी, ठीक है। अच्छा, असेस सिवियरिटी ऑफ एस्थमा, पीएफआर, क्लिनिकल साइन सिम्टम्स, what tests are required to diagnose and to manage? Common findings: chest CT, flow volume loops, spirometer, CBC, electrolytes, ABGs, liver function test, ECG, echo, ये हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा टच कर लिया इसमें।
अच्छा, उसके बाद ये आपका बीटा टू एगोनिस्ट, एंटीकोलिनर्जिक्स, फॉस्फोडाइस्ट्रेज इमिटर्स, ये जो थायोफिलिन होती है, ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट, मैस्ट सेल स्टेबलाइजर, स्टीरॉयड, मैग्नीशियम लाइडोकेन, एपिनेफ्रीन, केटामीन इनहेलेशन एजेंट, ड्रग्स टू अवॉइड एट इंडक्शन, मेंटेनेंस। अच्छा, जो होते हैं एंटासिड्स, उसमें उसमें कोई होता है चक्कर, एंटीहिस्टामिन्स, एंटासिड्स का कोई चक्कर होता है इसमें? H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट देने चाहिए नहीं देने चाहिए सर। उसमें ना यार, मुझे एग्जैक्टली भूल गई इसकी रीजन। ये मेरे ख्याल उसका कोई ना प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है। जब आप H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट देते हैं ना, तो वो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म खत्म हो जाता है। ये कंफर्म कर लेना, ये बहुत अरसे पहले ये कभी पढ़ी थी, ये मुझे भूल गई है ये बात ना। तो लेकिन एंड जितना मुझे याद है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि एंड जो H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होते हैं ना, उससे जो जो प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स जो होता है, तो हिस्टामिन्स के दूसरे रिसेप्टर्स का, वो खत्म हो जाता है। ये आप इसको कंफर्म कर लेना, ठीक है। अच्छा, वेंटिलेटरी सेटिंग्स के बारे में हमने पूरी बात की। डिफरेंशियल डायग्नोसिस एस्थमा ड्यूरिंग एनेस्थीसिया मैंने आपसे बात कर ली है। अच्छा, उसके बाद जो है ना पोस्ट, हाँ, ये आपको ना पल्मोनरी रिस्क फैक्टर्स पता होने चाहिए। पल्मोनरी रिस्क फैक्टर्स में अपर एब्डोमिनल सर्जरी, कुछ उसमें सर्जिकल फैक्टर्स होंगे, कुछ पेशेंट रिस्क फैक्टर्स होंगे, कुछ एनेस्थीसिया की टेक्निक्स होंगी। तो उसमें एक दो बातें जो आप ना भूलिएगा, वो लो एल्ब्यूमिन लेवल इज अ पल्मोनरी रिस्क फैक्टर, अपर एब्डोमिनल सर्जरी इज अ पल्मोनरी रिस्क फैक्टर्स, ठीक है। जो पुअर पेन कंट्रोल इज अ स्प्लिंटिंग होगी, उसकी वजह से सिक्रीशंस स्टेसिस होगा, पेशेंट पूरी तरह ब्रीथ नहीं करेगा, तो रिस्क फैक्टर होगा। ये एक पूरा इसका ना चार्ट है, पल्मोनरी रिस्क फैक्टर्स, ये आप देख लीजिएगा। अच्छा, उसके बाद मेरा ख्याल है ये सारी चीज़ें, मैच टेस्ट, ये वो चीज़ें जो आपसे, स्मोकिंग का ना आपको क्रोनोलॉजिकली पता होना चाहिए कि 24 आवर्स में क्या इफेक्ट आता है, एक हफ्ते में क्या इफेक्ट आता है, एक महीने में क्या इफेक्ट आता है, ठीक है। वो आप यही, ये जो मैंने आपको अभी लिंक दिखा रहा था ना, उसमें वो मौजूद है। ये मैं आपको एक दफ़ा दिखा देता हूँ यहाँ पे ना, एक, वो आप, मैं आपको ना शेयर कर देता हूँ। काफ़ी देर हो गई है मेरे ख्याल, अब हम ख़त्म करते हैं। लेकिन स्मोकिंग वाले में आप जाएंगे ना, तो वहाँ पे आपको ये पता चल जाएगा कि कितनी देर के बाद क्या इफेक्ट आता है, कितनी देर का बाद क्या इफेक्ट आता है, ठीक है। तो आप सब लोगों के आने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो अगला जो टॉपिक डिस्कस करना हो वो मुझे बता देना। तो कल मेरी वैसे छुट्टी है। कल आप लोग अगर दोपहर में भी, शाम को भी अगर आप करना चाहते हैं, तो मैं, आज तो मैं हॉस्पिटल गया हुआ था, तो मैं लेट हो गया था। तो आई होप कि मैंने आप लोगों को कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट दे दिए। इसको बाकी पढ़ लें, और जो पिछली जो डिस्कशंस है ना, उनको भी देख लीजिएगा। वो यहाँ पे आपको ना इसमें मैंने शेयर भी आज मैंने ग्रुप में किया था। तो वो जो उसकी प्लेलिस्ट है ना, एक मिनट सॉरी, जो रिस्पायरेशन की जो प्लेलिस्ट है, उसमें बहुत डिटेल से अलग अलग सिस्टम वाइज अलग अलग किया था। उसके इवन प्री ऑपरेटिव असेसमेंट को बहुत डिटेल से किया था। बहुत सारी चीज़ें जो है ना, जो मुझे ज़बानी, देखिए मैं कोई आप लोगों के लिए कोई प्रेजेंटेशन वगैरह तो बनाता नहीं हूँ, मेरे पास टाइम नहीं होता, जाहिर बात है। तो ये कुछ दफ़ा कुछ चीज़ों को ज़्यादा बेहतर जब प्रिपेयर किया होता है ना, वो रिकॉर्डिंग्स में मौजूद है। तो मेरी आपको मशवरा है कि अगर इस चीज़ को अब आप सुन लें, तो आपका वो, उसके अंदर से जो चीज़ रह गई है, वो आपको उसमें से मिल जाएगी फिर ज़रूर। मैंने ग्रुप के अंदर शेयर किया था रेस्पिरेटरी की प्लेलिस्ट, ठीक है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, और इंशाल्लाह फिर अगला टॉपिक मुझे बता दीजिएगा। मेरे दिमाग में ये था कि एक आप लोगों को ना क्रिटिकल इंसिडेंट्स, एक रीजनल, जी वो मेरे ख्याल डिस्कनेक्ट हो गया था मैं। तो इंशाल्लाह फिर करेंगे रीजनल एनेस्थीसिया। जो भी आपने करना हो मुझे ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा, फिर वो टॉपिक डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।